आज सुशी टॉक्स की ऑडियंस के लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आई हैव गॉट अ मैन ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया एडिक्शन फ्री. He is a he has been a yoga teacher. He is currently a drug counselor and he is a recovering addict. तो guys अपने रोलिंग पेपर्स अपने बॉन्ग्स सब बाहर निकाल के आज की हमारी इस अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए आप प्लीज रेडी हो जाइए. सुशी टॉक्स विद अनुराग शर्मा फ्रॉम निबाना. हेलो सर. थैंक यू सुशेन. यस सर. थैंक यू. सो आप अपना खुद का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं प्लीज ऑडियंस को. कैन यू टेल अबाउट योर होल जर्नी, हाउ योर जर्नी विद marijuana began? So I am Anurag. I am from Delhi, and right now I am the founder of a startup called Nibana with a clear vision to make India addiction free. I was an addict for many years, alcohol, weed, tobacco, and since last 9 years I am totally clean. And after I quit substances, I was a yoga teacher, meditation teacher. I had actually a company, a startup, wellness startup in the field of yoga and meditation for 3 4 years. And now since last 2.5 3 years, I'm fully into Nibana, where I'm trying to help people overcome alcohol, drugs, tobacco, weed. And as you rightly said, I have had my own journey with substances. It was a very long journey, which started with a lot of fun, and then it became a serious problem. Serious problem. I reached a stage where I wanted to take my life, Okay. and somehow I recovered, and now it's 9 years. Sir, so at what age did your like relationship with all these substances began? So I must have been 12, 13 years old, and I was going with my friends, and we crossed the cigarette shop, and we just started talking about cigarettes and all. And I volunteered. The conversation was like, "कौन पी सकता है? पिएगा क्या? ये वो." And I volunteered, and I smoked my first cigarette. Yes, sir. ठीक है. और उसके बाद after a few years, I started drinking, and by the time I was in 11th, 12th standard, I was a full-time smoker. Used to smoke 20, 25 cigarettes a day, In 11, 12. and 11, 12. Okay, okay. And I was a regular drinker. हफ्ते में 2-3 बार दारू पीना दोस्तों के साथ. I was very good in sports and studies, so I had full freedom. I used to feel I am a hero. I am pretty cool, right? एक false sense of वो confidence आ जाता है and like हाँ हाँ आपके peers भी कर रहे होते हैं तो you feel कि कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप. हाँ, मतलब सब तो नहीं करते थे, बट मेरा जो क्लोज सर्कल था वो तो सभी करते थे, तो बहुत मजा आता था यार. आसपास हंसते थे के खूब. लौंडे हाँ हाँ, पागल. 11 12 में खूब हंसते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, फुटबॉल खेलते थे, मजे करते थे. इट वाज अ वेरी फन वंडरफुल वर्ल्ड. आई एम श्योर आपने भी देखा होगा अपने टाइम में, अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में. तो बहुत सही था. उसके बाद मैं कॉलेज करने गया. आई होप हिंदी इज फाइन, राइट? Yeah, हिंदी yeah, इंग्लिश Delhi. मिक्स फाइन. हाँ हाँ. आप भी तो दिल्ली से ही उस हो मेरी तरह. राइट राइट. उसके बाद मैं बैंगलोर गया इंजीनियरिंग करने के लिए, और वहाँ पे मेरे को सेकेंड ईयर में गांजा मिल गया. Oh wow. तो बैंगलोर जो है ना, आई वेंट इन 98. आई एम 43 राइट नाउ. सो 98 व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर, देयर वाज नो सेल फोन्स. फ्लाइट्स वगैरह भी बहुत कम होती थी. जो ट्रेन से हम जाते थे यहाँ से, कभी भी आना जाना होता था तो. और बैंगलोर यूज्ड टू बी अ पब कल्चर दैट टाइम. Yes. पब सिटी कहते थे उसको, बैंगलोर को, राइट? तो वहाँ पे हर जगह दारू की दुकानें, और वेदर बहुत ही अच्छा होता था, एकदम ठंडा ठंडा. बारिश होती थी हल्की हल्की, तो और बोलते हैं जहाँ देखो जो पूरी मस्ती. सेश करने के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी सब कुछ था. अरे एकदम अमेजिंग यार. एंड नाइट लाइफ वाज अमेजिंग इन बैंगलोर दैट टाइम. Amazing nightlife, pub cities. There was a street called Brigade Road, MG Road there that time. This is before the software era actually hit. So उस time it was a college town when we went, and the software was just about to come. Amazing nightlife scene था यार. और हम लोग हॉस्टल में रहते थे, घर वाले आ नहीं सकते थे, राइट? और बस उसमें सेकेंड ईयर में मेरे को गांजा मिल गया, वीड. एंड in second year we moved out of the hostel, so we were like 4 guys, and we had our own 2 bedroom apartment, and we found weed, and that just changed my life. We Sushain, found matlab, you. weed found me, and it was just it was the most trippy and impactful thing I ever experienced in my life. Even today, right now, talking,
about it is just giving me goosebumps. The effect was terrific. The effect was just terrific. जब मैंने फर्स्ट टाइम हमने गांजा पिया था सबने, तो हम उस वक्त खूब हंस रहे थे. मेरा एक बहुत ही फनी सा फ्रेंड था, रूममेट था, वो एकदम नाचे जा रहा था. खूब सारा खाना हमने खाया. एंड देन दिस बिकेम, मंचीज बुलाते हैं ना उसको, मंचीज. मंचीज नहीं, कुछ भी खाया हमने, खूब खाना खाया, मिठाई खाई, और लाइक मीठा खाना बड़ा अच्छा लगता है गांजा फूकने के बाद. So we used to have a lot of fun, and then we started, initial days are very new, like in anything, and then you start stabilizing with the substance. So after a few months, it became regular. 2-3-4 महीने गया, शुरू में फिर भी लगता था कि यार ड्रग्स ले रहे हैं, ये है, कहीं पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, बट धीरे धीरे it was perfectly fine. So after that, after I think a few months, when we became comfortable with it, we started exploring, at least I started exploring and feeling other areas of weed. Like I just felt that it is giving me those access to the mind, जो कि मेरे को ऐसे मिल ही नहीं सकता. मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, novels and non-fiction. उसी वक्त आता है 17-18 में, when you are in college, you start exploring non-fiction and you start exploring new ideas. थोड़ा आपको लगता है कि बड़े हो आप, तो आप फिलॉसफी अगर आपकी अपनी बनना चालू हो जाती है, राइट? तो मेरे को म्यूजिक, मेरा पुल नहीं था गांजे के साथ. माई पुल वॉज बुक्स, और मैं बुक्स पढ़ता था खूब सारी. This is the time when I explored Carl Gustav Jung, Aldous Huxley, all those great books. और मुझे अभी तक याद है, this is like I have still not been able to forget it, that I read this book called Man and His Symbols by Carl Gustav Jung. ठीक है. और मेरा अपना रूम होता था एक छोटा सा, ठीक है, सबसे छोटा रूम था वो घर में. हम घर मूव कर लिया था हमने फर्स्ट सेकेंड ईयर के एंड में, और उसमें मैं पूरा डोप मारता था और मैं बुक ये पढ़ रहा था, और मेरे को लगने लगा यार कि द वर्ड्स आर जस्ट फॉलिंग एकदम. It was just like a trip I could never forget. And after that, my friend told me that let's go for a movie. We went for a movie, और लाइन में हम वहाँ खड़े हैं थिएटर में, and I'm completely absorbed in the book. You're still at that पूरा ट्रिप में था मैं पूरा. और मुझे लग रहा था कि the things I am able to see about the book, ये तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इस बुक में जो है मेरे को पता चल रहा है. This is the myth where people start believing that weed helps you in creativity, weed helps you in having fun, to an extent in the spiritual aspect and all of that. And this started continuing weed के साथ. weed बहुत कैजुअल हो गया था, और मेरा कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और दारू वारू तो चलती थी, सिगरेट चलती थी. एंड आफ्टर अ व्हाइल आपके सबसे बहुत ज्यादा कंजम्पशन ऑफ वीड, वैसे तो इट इज इलीगल ओनली, आप स्मोक कितना भी करो तो वो गलत बात ही है, वो भी नहीं, हम सही गलत पे भी आएंगे. बट आप लाइक नॉर्मली कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था? लाइक आप अगर जॉइंट पीते थे या बोंग के थ्रू लेते थे? कितना? यार बोंग हर वक्त नहीं पी सकते थे, बोंग हर वक्त नहीं पीते थे, मोस्टली सिगरेट में पीते थे, या पेपर जो आता था उसमें रोल करके पीते थे. उस वक्त पेपर उतने मिलते नहीं थे, तो मोस्ट ऑफ द जॉइंट आई यूज्ड टू स्मोक इन सिगरेट्स. सिगरेट का बड हटा करके, सिगरेट का बड हटा करके, और उसमें अपना एक फिल्टर लगा करके, बेसिकली द फिल्टर वाज मेड बाय द सिगरेट पैक के पेपर से, राइट? और उसके बाद थोड़ी सी हाँ, एक अरे बहुत क्रिएटिविटी थी यार एकदम, इससे ज्यादा क्रिएटिविटी और क्या होगी. और यार उसके बाद मेरा एक दोस्त था, एक रूममेट था जो हेवीली था इसमें, तो हम और बाकी 2 रूममेट उतने ज्यादा नहीं थे, बट वो भी पीते थे, और हम दोनों पी करके खूब खाना खाते थे यार. इतनी आइसक्रीम खाते थे, इतनी मिठाई खाते थे कि 300-300 रुपए की मिठाई खा गए जा करके. और उस टाइम में 300 रुपए वाज लाइक 1,000-1,500 रुपीज ऑफ दिस टाइम. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 एंड ऑल. बेसिकली विद कैनबिस व्हाट हैपेंस इज कि वो ना आपका ग्रेलिन यानी कि हंगर हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है. हाँ, तो उस चक्कर में ना आपकी बहुत ज्यादा भूख बढ़ जाती है, और आपका सैटिस्फैक्शन सेक्शन भी नीचे हो जाता है. तो बहुत ज्यादा. आप एक और चीज बता रहे थे ना कि वो मीठा खाने का मन करता है. कैनबिस के कारण ना ब्लड शुगर लो हो जाती है, ठीक है? तो अगर आप कुछ फास्ट शुगर जैसे कि चॉकलेट या कुछ खा लिए जो आपको इंस्टेंटली शुगर दे रहा है, तो यू फील गुड. दैट इज द रीजन, वो फ्लक्चुएशन के कारण. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपका लाइक यूज बढ़ गया था, देन यू प्रोग्रेस्ड आगे, है ना? हाँ, आगे उसके बाद कॉलेज खत्म हुआ, तो कॉलेज में मैं सेकेंड ईयर से क्लास जाना ही बंद कर दिया, राइट? और वीड के साथ मेरे को और भी नशे वशे इधर उधर ट्राई किए, बट माय प्राइमरी वाज अल्कोहल, वीड एंड सिगरेट्स, राइट?
सेकेंड ईयर से मैं कॉलेज जाना ही बंद कर दिया, मोर और लेस। आई मीन 90% ऑफ द टाइम मैं कॉलेज गया ही नहीं, ठीक है। और मेरे नंबर आ जाते थे विथ वीड एंड ऑल दिस एज। इफ यू सी द एज ऑफ 18, 19, 20 एंड देन यू कंबाइन द इंडिपेंडेंस यू गेट फॉर द फर्स्ट टाइम, then you combine the effect of weed substances and all of that, it just creates a totally different nature in different people. So I became very rebellious कि मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग। एंड मैं गांजा फूकता था, बुक्स वुक्स पढ़ता था, और धीरे धीरे गांजा फूकने के बाद आलस बहुत आता है। सो आई यूज टू स्लीप अ लॉट, कि गांजा फूक के पड़े हुए हैं बिस्तर पे, बुक पढ़ते पढ़ते सो गए। एक जो प्रॉब्लम जो मेरे को बाद में रियलाइज हुई थी सुशेन, और जो सब कुछ सब्सटेंस छोड़ने के बाद रियलाइज हुई, कि मेरी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो हो गई थी एक्चुअली वीड से। और चीजें भी नहीं याद रहती ना, चीजें भी याद नहीं रहती, ठीक है। और ये जो इफेक्ट था ना शुरू का, जो मैं बात कर रहा था कि कार्ल गुस्ताव यंग की बुक पढ़ के मेरे को लग रहा था वर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, वो तो उसके बाद तो मुझे वो किसी और बुक के साथ नहीं मिला, ठीक है। मिला क्या कि गांजा जब नहीं होता था तो मन करता था कि लेट्स स्मोक अ जॉइंट, और जब मारने के लिए, स्कोर करने के लिए, यू वुड गो टू एनी लेंथ। एंड आफ्टर स्मोकिंग विद फ्रेंड्स एंड ऑल, इट वाज फन, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, सो इट वाज स्टिल फन। But after college went over and I came to Delhi for, you know, like a year and a half, by this time I was totally into weed. मैं पूरा दिन वीड पी करके रहता था, सुबह से शाम तक। एंड आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स, आई डिडंट वांट टू डू सॉफ्टवेयर जॉब्स, सो मैं दिल्ली में सेल्स मार्केटिंग की जॉब्स करता था। एंड आई वाज टोटली स्टोन्ड। बाइक थी मेरे पास, यामाहा RX 100, सो यू कैन इमेजिन यामाहा RX 100 वाज अ ग्रेट बाइक। हाँ, तो पूरे दिल्ली में घूमते रहता था, नौकरी वोकरी इधर उधर छोटी मोटी की। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज का ही, जो दिल्ली में उसने नौकरी करता था, वो अकेला था, रहता था वो। ही वॉज इन टू पब्लिक पॉलिसी, और उसका एक छोटा सा कमरा था। सो 3-4 बजे मैं इधर उधर नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के उसके घर चला जाता था, और उसके पास और बुक्स थी, भयानक किताबें थी उसके पास। तो मैं सिर्फ गांजा फूक करके जो है ना बुक्स पढ़ते रहता था, सिर्फ यही काम था मेरा, एकदम ही क्रेजी, यू नो। एंड आई एम ग्लैड दैट आई read a lot of good books, you know. It wasn't that my pull towards book was not because of weed, but weed just, you know, it just gave me it gave me a different kick, कि I was able to think about it and all that. उसके बाद फिर मैं नौकरी वोकरी करने गया कोको कोला वगैरह में। I went to a very rural area of India called बीजापुर, ठीक है। तो वहाँ पे I was in sales and all, and वहाँ पे if you go to, this is North Karnataka, so वहाँ पे it's a very dry, okay. एंड वहां पे आई वॉज एन आउटसाइडर, ठीक है। तो वहां पे लैंग्वेज भी नहीं आता था, और वहां पे काम बहुत इंटेंस था, बहुत ज्यादा इंटेंस था। तो वहां पे कोई कोलीग्स वोलीग्स नहीं होते थे, बिजनेस पार्टनर्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल। तो मैं किसी के साथ पीता नहीं था, बट मैंने वहां भी गांजा ढूंढ लिया। गांजा मैं हर जगह ढूंढ लेता था यार, कहीं पे भी ढूंढ लेता था। अरे 10-10 मिनट में यार, इट वाज सो नेचुरल कि, और गांजा ढूंढ करके मैं गांजा फूकता था और काम करता था। और वहां पे मैंने एक्चुअली सुबह से शाम तक मेरा कम हो गया था, बिकॉज आई वॉज इन सेल्स। सो गांजा, ड्यूरिंग दिस टाइम आई रियलाइज कि यार गांजा पीने के बाद जो है ना काम करने में प्रॉब्लम होती थी, स्पेशली व्हेन यू वांट टू सेल, व्हेन यू वांट टू मैनेज स्टफ। सो इट वाज स्टिल स्लाइटली कंट्रोल, बट एवरी डे मारता था कि सुबह एक जॉइंट पिया, फिर दिन में नहीं पिया थोड़ा सा, फिर शाम को 1-2 जॉइंट पिया, और रात को तो फुल। एंड आई यूज टू, इट्स वेरी फनी यार, बिकॉज आई वॉज इन टू सेल्स एंड द इंटायर सिटी न्यू मी। छोटा सा टाउन था, एंड इफ यू आर अ कोक एग्जीक्यूटिव, कोको कोला एग्जीक्यूटिव, एवरीवन न्यू यू। सारे दुकान वाले वगैरह आप जाओगे तो सब जानते थे कि ये कोको कोला का बंदा है। सो आई कुडंट हैव कम आउट एज समवन हु स्मोक्स वीड। तो मैंने एक बंदा ढूंढ लिया था बाजार में, जो बैठा रहता था और गांजा बेचता था, और मैं जो है ना छुप छुपा के जाता था और उसको दूर से इशारा करता था ऐसे, और वो मेरे को गांजा देता था, और मैं फटाफट ढाल करके जाता था। एंड कई कई कोई देख ना ले, क्योंकि हाँ यार, अगर कोई देख लेगा तो फिर बात कंपनी तक जा सकती है ना कि ये गांजा फूकता है, और यू नो, लाइक इन दैट एनवायरनमेंट इट्स नॉट गुड। देयर इज ऑलवेज फियर इन पीपल हु स्मोक वीड। आप अगर कहीं पे, अभी तो बहुत ही ज्यादा हैश गांजा हो चुका है हिंदुस्तान में, आप कहीं पे जाओ, जो लोग रोल वोल कर रहे होते हैं यहाँ कॉफी शॉप्स वगैरह पे, दे आर लाइक चोर की तरह, वो इधर उधर देख करके करता है कि कोई, यू नो, बिकॉज पैरानॉइड होते हैं, कभी भी पकड़े जा सकते हो, कोई कॉल आउट कर सकता है, राइट। लेकिन वो छूट नहीं रही थी। बट इस टाइम तक मेरे को थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस होने लगा था कि यार ये जो है ना, ये तो छूटती नहीं है, इसको बिना पिए तो मन ही नहीं मानता है मेरा। और इस वक्त आई वाज एट द पीक ऑफ माय गेम यार, दिन में 50-60 सिगरेट, रात को दारू, दिन में गांजा, सो इट वाज क्रेजी। एंड जब आप अल्कोहल और वीड को मिक्स करते हो तब कैसा फील होता है?
Yeah, it's very difficult to articulate that feeling, but for me that feeling was not good. एकदम ही मेरे को लगता था कि कंबशन इंजन में जो है ना मेरा सर चला गया एंड एवरीथिंग इज जस्ट प्रेसिंग मी आउट क्रॉस फेड व्हेन यू बोलते हैं हैव ना, क्रॉस फेड हो गया था एकदम मैं। हाँ। क्रॉसफेड कह लो आप या आप उसको कह लो दैट डाउनर और यू नो बिकॉज अल्कोहल गिव्स यू अ हाई राइट इट मेक्स योर एनर्जी अप वेयर एज वीड इज लाइक अ डाउनर वो आपको थोड़ा सा नीचे ले जाता है रिलैक्स करता है रिलैक्स कर रहा था। वो कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज नॉट गुड बट मैं मारता था हम्म। and even this time I used to enjoy stuff because once you smoke weed you are not completely engaged in the external environment आपने weed मार के देखा होगा that you are always you come into an observant mode कि आप आप पीछे से थोड़ा सा पीछे हट के चीजों को थर्ड देखने पर्सन लगते पर्सपेक्टिव से देखते हो हो एंड एग्जैक्टली मतलब आप लाइक इतना ज्यादा माइंडफुल भी नहीं होते चीजों के बारे में, माइंडलेसनेस हो जाती है बल्कि मैं तो बोलूँ। माइंडलेसनेस हो जाती है स्लो हो जाते हो लाइक अ स्लो रेप्टाइल ठीक है बट यू आर एबल टू हाँ हाँ एकदम वही होता है एंड यू आर एबल टू यू नो लाइक जस्ट नॉट कंप्लीटली इंगेज विद द एनवायरनमेंट ठीक है और वो मेरे लिए वर्क करता था वहां पे बिकॉज इन दैट एनवायरनमेंट आई वाज फ्रॉम दिल्ली इन अ रूरल सिटी इन नॉर्थ कर्नाटका यू कैन इमेजिन ना कि वो एकदम ही अलग ट्रिप था हाँ। और पूरा पूरा दिन यही चलता था मैं कभी कभी जो है डोप मार करके एकदम रूरल एरियाज वगैरह में चला जाता था जहाँ पे बैठता था तो सब कुछ ब्राउन यू नो बिकॉज इट्स अ ड्राई एरिया Right, नॉर्थ कर्नाटका साउथ महाराष्ट्र एंड इट वाज रियली ट्रिपी सुशेन कि उस वक्त सेल फोन्स भी नहीं थे सेल फोन्स थे बट इतना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं था हाँ 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 हाँ। तो अगर आप सिटी के बाहर चले जाओ ऑन द हाईवे एंड यू टेक अ राइट एंड अ लेफ्ट यू विल जस्ट गो इनसाइड डीप की 40 किलोमीटर कोई गांव नहीं है एंड यू रीच अ प्लेस वहां सब कुछ ब्राउन है और वहां पे मैं अकेले बैठ करके यू नो मैं गांजा फूक रहा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है यू नो दिस इज लाइक अ दिस यूज्ड टू बी लाइक अ ट्रिप एट दैट टाइम यू नो और बंदा और मतलब वहां पे धूप इतनी होती थी हाँ। बहुत गर्मी नॉर्थ कर्नाटका साउथ महाराष्ट्र इज वेरी हॉट हम्म। तो एकदम धूप चल रही है और मैं सिगरेट फूके जा रहा हूँ गांजा फूके जा रहा हूँ you know like I'm just sitting there like a zombie you know like a ghost somewhere कि उसको लैंग्वेज भी नहीं आता वहां का हाँ। कुछ भी नहीं तो वो सब होने लगा और वहां पे एक दो लोगों को पता चल गया था कि एक यंग सा बंदा था जो कि पेप्सी में काम करता था वो एक दिन मेरे कमरे में आया कॉम्पिटिटर था वो मेरे कमरे में आया और पूरा गांजा पूरा मतलब एकदम ही स्मेल उसको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछता है कि तुम कुछ और भी लेते हो क्या दारू के साथ राइट तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं पता नहीं कुछ कोई आया था स्मेल थी मैंने कुछ जलाया ये सब मैंने बोल दिया बट दिस वाज बेसिकली द फेस वेयर द इनिशियल फन पार्ट had stabilized अब फन पार्ट नहीं बचा था यू नो इट वाज जस्ट दैट आई नीडेड इट एक दो फर्स्ट जॉइंट में थोड़ा बहुत मजा आता था सर घूमता था उसके बाद के जितने जॉइंट्स होते थे दैट वाज जस्ट अ फोर्सफुल अटेम्प्ट टू गेट द सेम हाई व्हिच आई गॉट लाइक फ्यू इयर्स बैक इन फैक्ट राइट तो वो होने लगा उसके बाद आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई केम टू Bangalore to I moved into a new company and by this time it just became too much मैं बिना गांजे के रह ही नहीं पाता था I needed weed every day so this was the time where I started realizing कि ये थोड़ा तो प्रॉब्लम है that I should stop it for some time I never realized that it's an addiction for me you know हम बात करेंगे कि एडिक्शन क्या होता है in a few minutes बट मेरे को लगने लगा कि यार ये बहुत समस्या आएगी मैं इसके बिना रह ही नहीं पाता हूँ ठीक है and during this time na I think before this there was a phase of 2 years where I had stopped alcohol and I was only on weed I just loved weed yaar I just loved it matlab the effect I am again telling you was just terrific there is a saying in substances rule एडिक्शन का है कि जिसको ज्यादा मजा आता है सब्सटेंस के साथ उसकी बर्बादी ज्यादा होने के चांसेस हैं he is the person who enjoys alcohol the most at an emotional identity level he is more likely to reach the very end right so at this time what used to happen कि एक दो बारी मैंने गांजा शाम को मारा और मैं इस वक्त डाउनर हो जाता था यार you cannot move out once you smoke weed for long periods of time for long years many years you won't be able to move out especially in this chaotic environment of traffic and work and all that right तो मेरे को वो प्रॉब्लम होने लगी थी कि मैं कोलीग्स के साथ एंगेज नहीं कर पाता था क्योंकि आप थोड़ा सोशल कम हो जाते होगे आप अपने साथ ही रहना awkward हो पसंद जाता करते था होगे। हाँ एग्जैक्टली मैं अपने साथ रहना पसंद करता था और उसके बाद कुछ ऐसे हादसे हुए जो मेरे को लगते थे कि यार बड़ा ही ये तो बड़ी नीच वाली हरकत कर दी कि मैंने गांजा जो है कचरे में फेंक दिया ठीक है घर के पीछे कचरा था और फिर कि रात को फेंक दिया कि यार कल से गांजा बंद करना है ठीक है
और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह मेरे को मन कर रहा है तो मैं जा करके कचरे से ढूंढ रहा हूँ गांजा, और कुत्ता है वहां पे यार, बदबू आ रही है और मैं कचरे से निकाल रहा हूँ गांजा और ढूंढ करके पिया। यार आप विश्वास नहीं करोगी, एक दो बारी जो है ना मैंने रात को टॉयलेट में फ्लश कर दिया, हाँ। टॉयलेट में फ्लश कर दिया तो वीड इज लीफ, वो पूरा फ्लश नहीं होता है। सुबह सुबह मैं उठा, मेरे को गांजे की तड़प है, मैंने फ्लश में टॉयलेट देखा, देखा कि गांजा फ्लोट कर रहा है, उसको मैंने जो है स्पून से निकाल के उसको सुखा के उसको आग में ड्राई करके फूका। ये बहुत ही गलत बात है यार, मतलब आई फील सो एम्बैरेस्ड अबाउट इट। सर्वर मतलब हुआ उससे तब भी। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच जस्ट स्टार्टेड गिविंग मी अ हिंट कि ये सही नहीं है। बट इसके बाद क्या हुआ कि मैं एक और कंपनी में गया, वहां पे इट बिकेम वेरी कैजुअल। सो व्हाट यू सी राइट नाउ इन द अर्बन इंडिया वेयर वीड हैश इज वेरी कॉमन, अल्कोहल एवरीथिंग इज वेरी कॉमन, what my generation has seen was the start of it, कि हमारे टाइम में there were small groups of people who had become very comfortable with weed, alcohol, you know, all these types of ideas. Traveling had just started, you know, 2000 the Y2K scene had happened, the software boom was just about to start, right? पूरा बूम 90s में इकोनॉमी खुली, 2000 में सॉफ्टवेयर बूम आया, लोग बैंगलोर मूव किए, पैसा वैसा आने लगा अर्बन इंडियंस के पास, अर्बन इंडियंस फॉरेन वगैरह जाने लगे, यू नो, ट्रैवलिंग होने लगी। सो ऑल दिस स्टार्टेड गेटिंग एक्सेप्टेड। सो आई वाज इन दैट जनरेशन व्हिच एक्चुअली स्टार्टेड दिस एंटायर मूवमेंट, इफ यू कॉल दैट कल्चर, आप बता सकते हो, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा है, you know, going out for eat every day, generation में तो in my generation it is very normalized, like very normalized, very normalized। तो वहां पे मेरे को बहुत सारे दोस्त मिल गए, मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था, उस टाइम में स्टार्टअप नहीं कहते थे बट इट वाज अ न्यू कंपनी, वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी। वहां पे बहुत लोग पीते थे, मैं हीरो था वहां पे। मैंने जब एनवायरनमेंट मेरे को ऐसा मिला, जब अपने ऐसे मिल गए फिर तो उनको आप सिखा रहे होगे कि खत्म। ऐसे अरे करके कुछ नहीं सिखा रहे होगे यार, मतलब उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद जो है ना, मैं सुबह से शाम तक पूरा दिन में फूकते रहता था, 15-20 जॉइंट दिन में पीता था मैं, उसमें से 5-6 जॉइंट लोगों के साथ शेयर होते थे जो इधर उधर और भी दोस्त थे, एंड आई वाज टोटली स्टोन्ड। बाय दिस टाइम आई वाज कंप्लीटली इनटू माय ओन। तो आई वाज वेरी गुड एट वर्क, कि मैं मेहनती तो बहुत था, काम वाम में करता था, बट आई वाज नॉट समवन हु वाज वोकल, कि वो उतना बात नहीं करेगा, right? Especially when you are working for a creative startup and all, there are many other things required. And that startup was a very light, new age company, new culture, you know, like Silicon Valley से inspired, Steve Jobs और Bill Gates की नारायण मूर्ति से इंस्पिरेशन लेकर के ये सब स्टार्टअप्स बने थे, ये कंपनी फॉर्म हुई थी। तो बड़ा ही लाइट कल्चर था और फास्ट ग्रोइंग थी। बट तो मेरे को ये हमेशा एहसास होने लगा था कि यार ये जो है ना, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बट देयर वाज नो, एब्सोल्युटली नो विल, एंड आई जस्ट कुडंट लीव इट यार। Almost from 2000 till 2007-8, till the time I left India and went abroad to study, I was totally stoned from morning till evening. और बहुत हेवी कंजम्पशन था मेरा वीड का, और मेरे साथ लोग रहते थे who were like surprised. Before I left India, I think 2005, 6, 7 की बात मैं कर रहा हूँ, I used to wake up and have like 2-3 joints of weed. Okay. सुबह उठते ही, उसके बाद मैं सिगरेट पीता था, कॉफी पीता था, नहाता नहीं था कि अगर नहाऊंगा तो किक नीचे चली जाएगी, नशा कम हो जाएगा। उसके बाद मैं ऑफिस जाता था, वहां पे गांजा इधर उधर फूकते रहता था, कि बना करके पार्क में पी लिया, इधर पी लिया। बिकॉज वंस यू आर इनटू सब्सटेंसेस, you really get very comfortable with everything. You find your own ways. हैबिट जब एक बार बन जाती है, फिर तो आप जो भी नॉर्मली भी चीजें करते हो उनके अंदर भी इट सीप्स इन, ठीक है, बिकम हाँ पूरा एकदम सीप्स इन। स्मोक अप कर रहा हूँ तो इफ आई लाइक नेटफ्लिक्स, एक बार नेटफ्लिक्स देखता हूँ फूकते हुए, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, यू कांट वॉच नेटफ्लिक्स विदाउट इवन स्मोकिंग आउट। सो आई गेट, बिल्कुल नहीं। तो अगर पार्क में जा रहे हैं, यहाँ पर बस देखना कि कोई हाँ, देख तो नहीं रहा, फिर क्रश कर लिया, बना लिया। हाँ, अरे क्रश कर लिया, बना लिया, फूक लिया, कहीं पे कुछ भी चल रहा है, मतलब इट बिकम वेरी कैजुअल, वेरी वेरी कैजुअल। और इसके बाद फिर मैं जब यूएस गया तो वहां पे मेरा वीड कम हो गया। बट वीड जब कम हुआ, क्योंकि वहां पे उतनी मैं ढूंढने ही नहीं गया, तो मैं दारू पीने लगा और मैं पढ़ रहा था। और ये जो फेज था ना मेरा, फ्रॉम 2000 टू 2007-8, मैन, आई वाज एट माय स्लोएस्ट। I was at my slowest and the least creative, least social.
least of everything that I could have been. But- मेरा काम मैं अच्छा करता था, but I was not बट very आपकी जब vocal about it. उस टाइम पे जो आपकी करंट माइंडसेट होगा वो आपको लग रहा होगा कि आई एम डूइंग गुड। वो जॉब वॉब चलती रहती थी यार, तो वो उसमें लगता रहता था। हाँ, सॉर्टेड रहता था। सॉर्टेड हो, कॉलेज में भी कभी आपके मार्क्स नहीं कम हुए, तो कभी नहीं, कभी नहीं फुली तरीके से आप छोड़ नहीं पा रहे थे वीड को। छोड़ नहीं पा रहे थे। और जब मैंने और छूटा तब जब रिप्लेसमेंट आई, जैसे यूएस में कम हो गया था, बट देन आफ्टर दैट आई मूव टू मेक्सिको। तो मेक्सिको वाज माय, आई से दैट इट वाज एक्चुअली द पीक ऑफ माय गेम, वेयर मेक्सिको में क्या होता था कि आई वाज इन अ वेरी हाई पोजीशन, आई वाज द हेड ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, आई हैड टू बिल्ड द बिजनेस ग्राउंड अप फॉर दिस इंडियन कंपनी इन लैटिन अमेरिका। आई वाज बेस्ड आउट ऑफ मेक्सिको सिटी, बहुत पैसा, बहुत शोहरत, सब कुछ था। तो वहां पे मैं सुबह उठता था, गांजा पीता था, गांजा पी करके मैं फिर सिगरेट पीना चालू करता था। दिन भर मैं इधर उधर गोली वोली खा लेता था। आई हैड दिस ऑन एंड ऑफ, आई वाज आल्सो इनटू टैबलेट्स, ऑन एंड ऑफ। कैन यू यार जस्ट यू नो लाइक, अब वो किस टाइप के टैबलेट्स थे ये मेरे को नहीं पता, बट देयर यूज्ड टू बी, आई वुड नॉट नेम, बट देयर यूज्ड टू बी अ टैबलेट व्हिच यूज्ड टू आई यूज्ड टू टेक, जो मेरे को 2 पेग का नशा दे देती थी। बेंजोडाइजेपिन हो सकती है या शायद वो होगी, मेरे को याद नहीं है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बट उस टाइप की टैबलेट्स, राइट। तो वो सब टैबलेट्स में ले लेता था कभी कभार इधर उधर। तो मैं इस टाइम में मैं कभी कभार टैबलेट्स ले लेता था, ये मेरे को प्रोडक्टिव भी बनाती थी और किक भी देती थी। ठीक है, तो पूरा दिन गांजा फूकता था, टैबलेट इधर उधर खा ली, 1-2 गोली, सिगरेट पीते रहता था। शाम को 7 बजे से शराब चालू हो जाती थी, ओके एंड शराब चलती जाती थी, चलती जाती थी, चलती जाती थी, चलती जाती थी। कि पहले मैं जैक डैनियल्स पीता था TGIF में बैठ करके 7 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक, 10-12 लार्ज, कभी 8 लार्ज, कभी 10 लार्ज। उसके बाद गैस स्टेशन से और दारू ला करके पीता था, उसके साथ गांजा मन किया तो गांजा भी पीता था। फिर या तो मैं सो जाऊं या मैं कहीं चला जाऊं या कुछ हो जाए। एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव टू यू नो लाइक overcome. I had a very bad experience. Once I went out with some people. I went out with somebody for dinner, and on the way I took a taxi. And in the taxi, some more people came in, and they took me all around the town entire night. And they took out a lot of money from my travel card. they Right? kind of kidnap Kidnapped me, right? So they took. So it was a very traumatizing incident of my life. उसके बाद I realized कि मेरे को छोड़नी है. So first I removed weed out of my life, and I removed tablets, because weed से मैं slow हो जाता था यार। मेरे को हमेशा लगता था कि अब मेरे को एक किक नहीं मिलती है, क्योंकि weed पीना जो है ना, अभी भी weed पीना is a complication that you have to go and buy it from places which are not easy to find. At least you cannot just go, like it's not like finding beer. बियर आप कहीं से भी ले लो, बट अगर आपको वीड लेना है देन यू हैव टू गो इनटू अ डार्कर सर्कल, अ डार्कर साइड ऑफ सोसाइटी, राइट। उसमें रिस्क लगता है, जितना भी बंदा बोल ले उसके दिमाग में थोड़ा तो होता ही है कि यार मैं इधर जा रहा हूँ स्कोर करने के लिए। दैट्स व्हाई होम डिलीवरी हैज बिकम सो बिग, दिल्ली Right? में तो हाँ लाइक जो डिलीवरी एप्स होती है हाँ। send- अरे होम डिलीवरी हमारे टाइम में भी था यार, हमने भी ढूंढ लिया था बैंगलोर में कि हमें डिलीवर करता था, ठीक है। बट उसके बाद यू हैव टू फाइंड दीज एवेन्यूज, राइट। और मेरे को वीड से जो है ना किक नहीं मिलती थी। सो आई सेड कि मैं वीड और ये छोड़ दूंगा, और क्या नाम है वो, मैंने छोड़ दिया वीड, टैबलेट्स एंड ऑल। बट उसके बाद दारू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एंड देन देयर वाज अ जर्नी वेयर आई वाज जस्ट ऑन अल्कोहल एंड सिगरेट्स, एंड दैट यूज्ड टू फ्लक्चुएट। बीच में कभी कभार वीड मार दिया, कभी MDMA मार दिया, ये सब। बट प्राइमरी सब्सटेंस वाज दिस क्या नाम है, अल्कोहल cigarettes. एंड tobacco in the end. And last के 1.5-2 साल it was only beer and cigarettes, because it was just the replacement. It's like a खुराक, कि आपको गांजे का खुराक मिल रहा है, अब गांजा बंद हो गया तो वो खुराक दारू से मिलना चालू हो जाती है। That is why when people come out of addiction, one of the things that we have to take care is that they don't replace this with something else. Okay, that something else may not be as bad as say alcohol या weed, but it could be very bad. कि अगर आप गेमिंग में लग गए, कि ठीक है यार आप गेम खेले जा रहे हो बिना नशा किए, एंड इफ यू आर नॉट प्लेइंग गेम्स वेयर यू हैव टू पुट इन मनी, यू मे नॉट डाई, बट दैट इज नॉट हेल्दी फॉर यू। Gambling. You are missing out on life. Gambling में तो you are losing money, but forget about, even I'm not even talking about that. If someone just quits alcohol and weed, and they, instead of living life in a good way, in a more engaging, healthy, purposeful way, they start gaming, कि हम सिर्फ गेम खेलेंगे। बट अगर आप गेमिंग पकड़ लेते हो कि आपने गांजा छोड़ दिया और आपने
अल्कोहल छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दी, but you are just into gaming कि now instead of spending 3 hours to smoke weed, you are coming in your house and you are just gaming. You may not die, but you are missing out on your life. You are not giving good information, good engagement to your mind, body and soul. राइट सो इसमें भी यही होता है, लोग जब नशा छोड़ना चालू करते हैं सुशेन, दे हैव दिस फैंटेसी, और मेरे को तो रोज ऐसे केसेस आते हैं कि उनको लगता है कि गांजे का नशा इज डिफरेंट देन अल्कोहल का नशा, उनको लगता है सिगरेट का नशा इज डिफरेंट देन हेरोइन का नशा. द पैटर्न्स आर द सेम, योर बॉडी नीड्स इट फॉर द सेम रीजंस. इट्स जस्ट दैट योर माइंड एंड बॉडी लाइक्स हेरोइन मोर देन वीड. दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट? तो मेरे साथ ये होने लगा, और उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद आई जस्ट एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ स्टार्टेड कोलैप्सिंग, एंड आई रीच्ड अ प्लेस वेयर आई यूज्ड टू जस्ट सिट इन माई हाउस अलोन, ड्रिंकिंग फ्रॉम 4 in the evening, 5 in the evening till whatever, जब तक मैं पस्त होकर के सो ना जाऊं या कहीं मैं जा करके नाटक वाटक करके ना आ जाऊं. एंड आई रीच्ड अ प्लेस वेयर समटाइम्स आई यूज्ड टू क्राई व्हेन आई यूज्ड टू ड्रिंक. और उसके बाद there was this one day where I decided that I'm just going to end it because every area of my life had collapsed. ठीक है, every area, like my work was almost gone, money problems, relationships, family से बात नहीं हो रही थी, health खत्म हो गई थी बुरी तरीके से, मैं इतना पतला हो गया था. I was weighing 51 kgs. Right now I am 63-64, 10 kgs कम था मैं. And I had no idea कि अब मैं इसको बदलूंगा कैसे, because नशा ही नहीं जा रहा है. But you can call it karma that I took a U-turn and I worked with somebody. इसके पहले भी मैंने हेल्प लेने की कोशिश की थी, डॉक्टर के पास गया था, काउंसलर से भी बात की थी, और भी संस्थाओं में गया था, बट मेरे को पूरी हेल्प नहीं मिली. पढ़ता भी था ऑनलाइन, बट उसके बाद आई वर्कड विद समबडी फॉर अ ईयर. आई टुक 100 सेशंस एंड आई केम आउट ऑफ इट. एंड वन ऑफ द थिंग्स आई लर्नड is that it doesn't matter what substance you are doing, the patterns are the same. गांजे के साथ प्रॉब्लम क्या है? गांजे के साथ वही प्रॉब्लम है जो हेरोइन के साथ है कि यू विल नॉट एंगेज विद द वर्ल्ड एंड यू विल बी लाइक सम रेप्टाइल जो एक ही जगह पड़ा हुआ है, एंड स्लोली यू विल बिकम ब्रेन डेड. आपका पूरा ब्रेन ही खत्म हो जाएगा. सो यू कैन कॉल दैट ओके इट इज नॉट दैट रिस्की, बट बिकॉज व्हाई डू पीपल थिंक कि अल्कोहल रिस्की है? क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद लिवर डैमेज भी हो रहा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके सोशल इम्पैक्ट्स बहुत जल्दी दिखना चालू हो जाते हैं. मारपीट हो गई, ड्रंक ड्राइविंग, आपका सोशल वैंडलिज्म, सोशल एम्बैरेसमेंट हो जाता है कि झगड़ा हो गया किसी के साथ, आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया, किसी पे उल्टी कर दी, राइट? अब हेरोइन का क्या है? हेरोइन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हेरोइन का इतना गंदा इंप्रेशन क्यों बना है? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शंस एंड ऑल दैट, राइट? बट ऐसा नहीं है दैट हेरोइन is a bad drug or is a more dangerous drug. Sorry, bad is not the right word. More dangerous drug than cocaine or like weed and all. The key is that it is taking you in a place where you are not able to engage with the world and you're just escaping from yourself. You lose yourself. कुछ बचता ही नहीं है. आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ वेल बीइंग, यूफोरिया मिल जाता है. आप बिल्कुल कंफर्टेबल और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंफर्टेबल हो जाते हो अपनी कैसी भी, अगर आप गटर में भी पड़े हो और आपके पास हेरोइन है, you can easily stay there. You can easily stay there. Even with weed, if you go to many of these so-called spiritual places and all world में, जो कि spirituality के नाम पे लोग गांजा पी करके पड़े हुए हैं, तो गांजा पी करके तो आप कहीं पे भी पड़े रहोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, right? Because one of the things that we as society need to understand that all these substances, whether you talk about tobacco, whether you talk about alcohol, weed, इसके काफी सारे uses होते हैं. And one of the uses that is they are painkillers. आप तो डॉक्टर हो, आपको पता होगा. But one side which we don't acknowledge is that they don't only help you deal with physical pain but emotional pain as well. गांजा पी करके होता क्या है आपको? दैट यू आर एबल टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ स्टफ. यू आर एबल टू escape from yourself. You are able to forget your own self for some time. That is what is happening ना. जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आपके चीजें आपकी लाइफ में सही नहीं है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो सब कुछ चले जाता है. एंड यू आर एबल टू एंटर अ हेड स्पेस जहाँ पर यू आर नॉट ट्रबल्ड इमोशनली, यू आर नम. एंड एग्जैक्टली
बस आप you can survive basically बस. right? हाँ. That is the reason people do it, right? When you are talking about कि मेरे को स्ट्रेस होता है और गांजे से मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, then the question is that what is it that is creating stress? और आप क्या चीज से ऐसा स्ट्रेस हो रहा है कि आप गांजा पी करके उस चीज को भुलाना चाहते हो? वी आर नॉट स्टेइंग इन लाइफ थ्रेटनिंग एनवायरमेंट्स राइट नाउ. This is probably the golden era of humanity. If you look at it from one perspective, that majority of the human beings all over the world, they are not in life threatening environments apart from people, you know, who are in war zones and all that, right? वो भी because of capitalist greed, वो लोग उन लोगों की life problem में. Otherwise we are not staying in life threatening environments. That's why lifespan is so much, right? आप जो काम कर रहे हो कंपनीज में, वॉट एवर इज योर प्रोफेशन, यू आर ट्रेन फॉर दैट फॉर लाइक 20-25 years. कि यू फर्स्ट वेंट टू स्कूल, देन यू वेंट टू कॉलेज, देन यू डिड MBA, you know, like hypothetically, then you have been working in that job, in that industry, in that profile for like 7-8 years. So what is it that is creating stress? That you are smoking weed? That is the real question, that what is the substance doing for you? According to me, जो आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स है, आप अपने आप को वैसे एनवायरनमेंट में डालते ही नहीं हो. लाइक नेचर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है. हम सब लोग अर्बन लिविंग में है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हम सबके. एंड प्लस मेरे को एक और आपसे चीज पूछनी थी. ट्रॉमा का कोई बेसिस लगता है आपको आपकी एडिक्शन की जर्नी में, या ट्रॉमा क्या बेसिस है एडिक्शन का? बिल्कुल ट्रॉमा बेसिस है यार एडिक्शन का, बट लेट्स डिफाइन ट्रॉमा. ओके, फर्स्ट ट्रॉमा इज अ वेरी broad word, like addiction. You know, mental health is a very broad word, like you know, like addiction is a बहुत broad word है. Physical pain is not as broad. Physical pain का आप जाकर के पता कर सकते हो कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है. When we are talking about the mind, when we are talking about emotions, वो इतना ज्यादा specific नहीं है. ठीक है, हमें ब्रेन के बारे में पता ही नहीं है ज्यादा, बहुत ही कम पता है. So when you are talking about trauma, what is trauma? Trauma is basically an emotional wound. एक भावनात्मक घाव जो एक आदमी के अंदर उत्पन्न होता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ चीजें हुई होती हैं. अब ये भावनात्मक घाव कितना गहरा है, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन इन द सिचुएशन. अब दिस इमोशनल वुंड विच यू कैन कॉल ट्रॉमा कैन बी फॉर मेनी रीजंस. इन एक्सट्रीम केसेस इट कुड बी अ डीप इमोशनल फिजिकल अब्यूज. ठीक है, मैं एक किताब पढ़ रहा था उसमें, ये जो आप बात कर रहे हो ना एडिक्शन के ऊपर, अगर हम नशे के ऊपर बात करें, ठीक है, इन सीरियस केसेस ऑफ एडिक्शन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा. सीरियस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा. ठीक है, सीरियस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा मीन्स कि वेयर अ पर्सन इज टोटली डिवास्टेटेड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देयर वाज अ बुक आई वाज रीडिंग सम टाइम बैक, और उसमें ऑन एडिक्शन ओनली, उसमें एक केस था वेयर दिस गाय, you know, this boy was sent to foster homes. कि you know, like पेरेंट्स मर गए तो इसको फॉस्टर होम्स में भेजा गया. अब इसको एक फॉस्टर होम में जो है, ये बहुत शैतान टाइप का बच्चा था, बहुत ज्यादा शैतान टाइप का बच्चा था. तो इसको जो है ना क्लीनिंग सिरप पिला देते थे जो इसके फॉस्टर पेरेंट्स थे. जो क्लीनिंग सिरप नहीं होता जो किचन विचन साफ करने के लिए होता है, वो इसको पिला देते थे ताकि इसको पेन हो और ये चुपचाप बैठा रहे कुछ टाइम के लिए. दैट इज अ डीप ट्रॉमा फॉर अ चाइल्ड. Now, those cases, when you go through that level of trauma, okay, and on the way you find something which gives you a relief from that pain, you get hooked to it. अगर आप किसी से पूछोगे ना कि आप नशा करते हो, क्यों करते हो, डीपर जाकर के अगर आप उस क्वेश्चन को पेनिट्रेट करोगे, द आंसर विल बी दैट इट गिव्स मी रिलीफ. रिलीफ फ्रॉम व्हाट? समथिंग दैट इज कॉजिंग some level of discomfort inside. When anyone who has been a serious addict like me is going to tell you कि जब हमने पहली बार नशा किया था, अल्कोहल किया था, टबैको किया था, it was like a hug. It was just a feeling of complete calmness, complete peace. So definitely trauma is a very very important element of someone becoming a full blown addict. ठीक है. Now trauma can come from many places. There can be social trauma. For example, हमारी तो traumatized society है कि किसी बच्चे को आप बचपन से बोल रहे हो कि तू काला है, तू काला है, तू काला है. That is a trauma. He can be traumatized in a way where he starts thinking low about himself कि उसमें कोई कमी है, उसको कोई पसंद नहीं करेगा, उसको कोई पसंद नहीं करता.
वहीं पर it makes that person vulnerable for addiction. vulnerable for substances, vulnerable for wrong coping mechanisms. Maybe एक आदमी का coping mechanism हो that he gets into this behavior of doing anything to be liked by people around him. People pleaser. जैसे- People pleaser, validation seeker, approval seeker आप कह सकते हो उसको, which is a big issue. Whereas someone else could find solace in weed. कि गांजा पीने के बाद फर्क नहीं पड़ता है, वो चीजें दिमाग में ही नहीं आती हैं कि मैं काला हूं, मैं क्या हूं. दिस इज अ वेरी माइल्ड एग्जांपल आई एम गिविंग. तो ये चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जा सकती है कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पे आपने सिविल वायलेंस आया है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइल्ड सोल्जर्स के बारे में पढ़ोगे, अफ्रीका में चाइल्ड सोल्जर्स के बारे में पढ़ोगे, ब्लड डायमंड एक मूवी थी उसमें भी दिखाया है. लियोनार्डो उसमें डिकैप्रियो। क्या होता है, उसमें क्या होता है कि ये बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ 7, 8, 10, 11 साल के हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. अचानक से लोग आए, फैमिली को मार दिया, इनको उठा करके ले गए, उसके बाद इनको ब्रेन वॉश किया, थोड़ा सा इनको नशा दिया और बोला कि चल गोली मार. यू नो, इट जस्ट गिव्स देम some substance which can just put a layer of comfort on their pain. ये बहुत बड़ा हादसा है, राइट? सो ये एक डीप ट्रॉमा है. बिना नशे के एक 11 साल का बच्चा थोड़ी गोलियां चलाएगा AK-47 लेकर के या बंदूकें लेकर के. इफ यू एवर हैव अ चांस टू वर्क विद एनी NGO who work with sex workers, you know, child slavery, इस टाइप के populations के साथ, there's a heavy case of substances there. Like, You know, because brain washing के लिए like people use amphetamines also, हाँ methamphetamine. कुछ भी हाँ बेसिकली यू आर नंबिंग देयर इमोशंस ना, और वो डरे हुए होते ही हैं. जैसे एनजीओ में अगर आप कोई एनजीओ आपको मिले जो सेक्स वर्कर्स के साथ काम करता है, रेस्क्यूड सेक्स वर्कर्स के साथ, यू आर गोइंग टू फाइंड दैट अ लॉट ऑफ देम आर ऑन अल्कोहल और सम सब्सटेंसेस. क्योंकि हैविंग ए स्ट्रेंज मैन exploring you sexually and you not willing to do that is a deep emotional trauma. उस इमोशनल ट्रॉमा से डील करने के लिए यू नीड समथिंग विच कैन नम योर इमोशंस, आपको बेहोशी की हालत में ला दे कुछ टाइम के लिए, कि आपकी भावनाएं वगैरह जो है ना वो पूरी दब जाएं. सो ऑल दिस ट्रॉमा makes a person pick substances, pick wrong coping mechanisms, some unfortunate ones, because यार लाइफ में जो है ना सब कुछ लॉजिकल नहीं होता. दिस इज अ वेरी रॉन्ग धारणा in our society. World is not logical. World is far more uncertain. कि ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई अगर गरीब घर से है तो वही ड्रग एडिक्शन में जाएगा. एकदम नहीं, उसका तो कोई तुक ही नहीं है, उसका तो कोई तुक ही नहीं है. यू नो, लाइक सबसे ज्यादा गांजा वांजा जो फूक रहे हैं आजकल वो तो सब पढ़े लिखे लोग हैं हमारी हाँ, तरह, हमारी जनरेशन के राइट? हाँ हाँ, अर्बन एरियाज में रहते हैं. अर्बन एरियाज में होते हैं. सर वीड का स्पिरिचुअल साइड जो लोग बोलते हैं ना कि लाइक इट इज कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा and like people use a lot of psychedelic substances. Weed also, they use it as a psychedelic substance to open new horizons and different चीजें, different perceptions feel करने के लिए. तो do you believe in that and क्या ये true है या false है? क्या आप एक spiritual person बन सकते हो cannabis के बिना भी? देखो, कैनबिस के बिना ही आप स्पिरिचुअल पर्सन बनोगे. ठीक है. और आपने जो बोला ना कि सच है ये गलत है, ना ये सच है ना ये गलत है, ये एकदम बेवकूफी का आर्गुमेंट है. इससे बड़ी बेवकूफी की धारणा जो है ना, मेरे ख्याल से मानव जाति के इतिहास में नहीं होगी कि आप गांजा फूक करके स्पिरिचुअल बन जाओगे. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी है क्या? ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट, जो हमारे हिंदी संस्कृत भाषा में उसको आत्मा कहेंगे. ठीक है, तो स्पिरिट तो सबके अंदर है, आत्मा तो सबके अंदर है. सो यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल. इट्स इज नॉट समथिंग कि आप बाहर से जाकर के कुछ गेन कर रहे हो. तभी अगर आप उपनिषद पढ़ोगे, ये हजारों साल पहले उपनिषद में कहा गया था कि भगवान, आत्मध्यायिकता कहते हैं हिंदी में स्पिरिचुअलिटी को, आत्मध्यायिकता शायद, वो सब अंदर है आपके अंदर, सब कुछ अंदर है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड टू गेट स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस चीज को, स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल सब लोग हैं, इमोशनल सब लोग हैं, इंटेलेक्चुअल सब लोग हैं, बट कुछ लोगों में ये चीज पॉजिटिव साइड पे होती है, कुछ लोगों में ये चीज नेगेटिव साइड पे होती है. जो एक पॉजिटिवली स्पिरिचुअल आदमी है
वो एक कंपैशनेट आदमी है, उसमें ग्रीड कम है, वो दूसरों के दर्द को समझ पाता है, वो अपने घमंड अपनी ईगो से बाहर निकल चुका है, वो मटेरियलिज्म से बाहर आ चुका है, उसको आप एक स्पिरिचुअल आदमी कहोगे, ठीक है। अब इसका जो लिंक क्या है गांजे से, उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा एक मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, थोड़ा इतिहास बताता हूं इसका, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर हो गया, ठीक है। बहुत कुछ कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म, मार्केट ओपन होने लगा, बहुत अलग अलग तरह के विचार, बहुत अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज आने लगी, ठीक है। इसी में एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ ऑथर्स, ठीक है, जिन्होंने एक लिटरल सब कल्चर निकाला था जिसको बीट जनरेशन कहते हैं। दिस वाज इन लेट 50s, मिड 50s, लेट 50s। इस जनरेशन की, इस ग्रुप ऑफ सब कल्चर्स की आइडियाज थे रिजेक्शन ऑफ मटेरियलिज्म, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, रिजेक्शन ऑफ बेसिकली नॉर्मल नैरेटिव्स, ओके। A quest of the mind was another of their values. Sexual experimentation, usage of psychedelic drugs to understand the mind. Very ये liberal सब उनको, thinking. Extreme liberal. you can call it liberal. अगर if that is the definition of liberal you want to give, you can call it. But liberal, I don't know what exactly a liberal definition would be. But ये उनकी values थी, ठीक है। इसी टाइम पे सैन फ्रांसिस्को में एक ग्रुप ऑफ पीपल थे who were running their own movement of exploring the poetry side of society, which included Music. interest in cross-cultural values, which had interest in different type of philosophies, which had a quest of exploration of Latin American, Native Indian religions, अपना philosophy, Eastern philosophies, Eastern ways of living. Buddhism. ये बीट जनरेशन के जो दिग्गज लोग थे, दे वेंट टू सैन फ्रांसिस्को एंड दे बिकेम फ्रेंड्स विथ दिस ग्रुप इन सैन फ्रांसिस्को. दिस ग्रुप इन सैन फ्रांसिस्को वाज कॉल्ड सैन फ्रांसिस्को रेनेसां. Okay. दिस एट द सेम टाइम वियतनाम वॉर वाज हैपनिंग. यू नो 50s में वियतनाम वॉर चालू हुआ था. बाय द टाइम लेट 50s अर्ली 60s देयर वाज अ पॉपुलेशन इन यूएस व्हिच वाज अगेंस्ट द वियतनाम वॉर. Okay, during the same time, the music culture, the pop culture started going up. You know, soft rock, Jefferson Airplane, Doors, you know, Yes. Bob Dylan, all that started coming. This was the time when media power also started going up, right? Now, this entire idea was so much concentrated in San Francisco that San Francisco became the hub of liberalism, you know, spirituality, counterculture in the world. Because यूरोप तो इस टाइम पे जूझ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के जो भी रिपरकशंस हुए, ठीक है. एंड यूएस वाज जस्ट गोइंग अप. इसी टाइम में जो है हिप्पी कल्चर चालू हुआ. हिप्पी कल्चर्स, हिप्पीज वर कॉल्ड बीटनिक्स, द पीपल हु अडॉप्टेड, द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ द बीट जनरेशन सब कल्चर. तो हिप्पीज की भी सेम वैल्यूज थे जो बीट जनरेशन के थे. इट वाज जस्ट यू नो अ फ्लो, आगे चल के. नाउ व्हाट हैपेंड कि मीडिया बढ़ने लगा. 1960s लेट 60s में टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल निकाल दिया. क्योंकि देखो लोगों का क्या होता है ना सुशेन, कि जो वो लोग करते हैं ना उसके लिए एविडेंस ढूंढते रहते हैं. स्पेशली मीडिया का तो यही काम है कि इधर से कनेक्ट कर दिया, उधर से कनेक्ट कर दिया. टाइम मैगजीन में किसी ने आर्टिकल लिख दिया कि जो ये हिप्पी कल्चर है उसके रूट्स तो एंशिएंट इंडियन सन्यासी वगैरह से हैं, बिकॉज दे रिनाउंस द वर्ल्ड, यू नो. उन्होंने सारा मटेरियलिज्म वगैरह कनेक्शन आ गया, राइट. एंड दे ऑल्सो, बिकॉज एट वन लेवल हिप्पी कल्चर, देखिए हिप्पी कल्चर इज नॉट अ कल्चर ऑफ नशा. अगर उसके रूट्स देखोगे आप, राइट, it had its own importance that time. A lot of music, a lot of ways of living in that side of United States was influenced by the hippie culture. But इस कल्चर में जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग थे, they were in the age group of 15 to 25. And a lot of them at this age were questioning कि क्या क्या है क्या नहीं है. लड़ाई हो रही है वियतनाम में, you know, ये बड़ी फैंसी सी चीज है. हिप्पी कल्चर, म्यूजिक चल रहा है, ये चल रहा है. So more people started associating with this, right? During the same time, 60s and early 70s, mid 60s was when yoga started going to US. You know, जैसे वुडस्टॉक का जो फेस्टिवल हुआ था उसका ओपनिंग टॉक सच्चिदानंदा ने दिया था. स्वामी सच्चिदानंदा बहुत बड़े
दिग्गज माने जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन उनको बताया गया था कि ये एक म्यूजिक का फेस्टिवल है, सो द स्पीच ही गिव दैट म्यूजिक इज ग्रेट फॉर पीस एंड ऑल। अब 500,000 लोग आए थे उस फेस्टिवल में। अब उस फेस्टिवल में एलएसडी चल रही है, गांजा चल रहा है, और योगा भी वो चल किसको रहा पता है, योगा भी चल रहा है उसमें। यू कैन नॉट से ना दैट द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इंडिया एडवोकेटेड दैट, ऐसा नहीं कह सकते आप। अब आप मेरे को बुलाओ कि यार यहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है अनुराग, आप आके नशे के बारे में बात करो। अब वहां पे इतने लोग नशे में आए हुए हैं और कोई नशा कर रहे हैं 10-15 लोग उधर उधर, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि मैं एडवोकेट कर रहा हूँ कि भैया नशा करो आप, हाँ। राइट? ऐसा नहीं होता है, राइट? ड्यूरिंग द सेम टाइम हिप्पीज स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लॉट, ठीक है? एक ट्रेल है वर्ल्ड में जिसको हिप्पी ट्रेल कहते हैं। इट्स, हाँ starts from Tehran, Iran, हाँ, करेक्ट, Kabul, एंड इट कम्स काबुल Peshawar, अफगानिस्तान, हाँ, एंड इट एंड्स इन नेपाल, गोवा एंड Kasol, साउथ ईस्ट एशिया, कसौल Bangkok. वसौल सब, हाँ. हाँ। So even the San Francisco Renaissance, they got associated with this Krishna movement. So you know the Krishna movement, I think I don't remember the name, but ISKCON और ये सब कि जो लोग थे वो वहां जाने लगे थे, and this entire idea became associated. They were able to see the similarities. ठीक है कि चलो ये लोग भी वही बात कर रहे हैं कि डिटैचमेंट है, मटीरियलिज्म नहीं चाहिए, सब सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, इक्वालिटी शुड बी देयर, you should do whatever you want, you should become free. The concept of freedom, right? But there's a huge difference. The concept of freedom according to Indian spirituality is nirvana, is moksha. Moksha. It is freedom from your own ego. It is not freedom from the external world. ठीक है? तो ये होने लगा जब हिप्पीज इंडिया आने लगे, ठीक है? लोड्स ऑफ हिप्पीज केम हियर इन 60s एंड अर्ली 70s। अब आप खुद बताओ स्टोरीज कैसे बनती हैं, कैसे बनती हैं कि कोई गया किसी से बात की, उसने जाकर के किसी को कुछ बोला, उसने जाकर के किसी को कुछ बोला। अब हिप्पीज आए इंडिया, इनको कोई साधु मिल गया। बाय दिस टाइम वी वर स्टार्टिंग ऑफ द कैपिटलिज्म, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। ऐसा बहुत जरूरी होने लगा था। वी हैड मूव्ड आउट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी, we got independence in 1947 and we were completely moving towards capitalism. तो सबको बिजनेस बनाने थे, सबको नौकरियां करनी थी। अब ऐसा नहीं है कि आप गाय रख लो अपने घर पे और जमीन जोत लो तो आपका खर्चा चल जाएगा, पढ़ाई की, आपको कॉलेज जाना था, तो इसमें आपको धंधे बनाने हैं। हिप्पीज केम हियर, दे स्टार्टेड एंगेजिंग विद इंडियंस। इनको कुछ अघोड़ मिले, कुछ नागा मिले, इन्होंने सुना कि भैया ये तो गांजा पीते हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि यार गांजा से तो स्पिरिचुअलिटी होती थी, ठीक है? अब ये चीज उनसे रेजोनेट की बिकॉज यू आर जस्ट फाइंडिंग एविडेंस। अब सिर्फ पूरी स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने यही पकड़ लिया। जब ये हिप्पी वगैरह लोग योगा सीखने गए तो योगा तो बहुत ही वास्ट है, बट रेजोनेटेड विद देम वाज आसन, यू नो द फिजिकल साइड ऑफ योगा व्हिच इज one of the 8 limbs of hatha yoga. There are 4 types of yoga: Raj Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. All this asana you see, all the yoga studios and all, that is a way to practice Raj Yoga. And that is just one of the ways to practice Raj Yoga, which is Hatha Yoga. Hatha Yoga में एक element है आसन, तो उसमें और भी चीजें हैं, but this resonated. So even yoga, the definition of yoga changed from being a way of life in which the first element was yama. Yama का मतलब non-violence. Yama में आता है your actions to society, doing good for others, your morals, your ethics. वो सब backstage पे चला गया and the only thing that became popular was the physical side of yoga. अब इसमें मीडिया का रोल देखो, वेस्टर्न मीडिया को यही मिला, यही उठाया क्योंकि यही सबसे ज्यादा बिकता था। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो बिकता है वो चढ़ता है ऊपर, तो योगा में यही हुआ। गांजा, एवरीवन इन वेस्टर्न वर्ल्ड लव्ड गांजा, कि गांजा पीने से किक मिल रही है, अपना बैठे हुए हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, हिप्पी हैं, यू नो व्हाटएवर। यहाँ पे जब इनको एसोसिएशन मिला कि अरे यार ये हम कोई अभी बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बहुत सालों से चल रही है, ये तो बहुत सालों से चले आ रहा है, राइट? स्पेशली व्हेन देयर वर क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड दैट वी शुड यू नो मेक वीड इलीगल। इसी टाइम में ये सब चीजें हो रही थी यूएस में, ठीक है? वो एक अलग टॉपिक है। रिचर्ड निक्सन, वॉर ऑन ड्रग्स, सब war on drugs, everything. The same thing happened with tantra. Tantra is the most supreme philosophy of the mind in the history of humanity. It is the philosophy of the mind. उस philosophy में एक बहुत ही छोटा element है the sexual side of it, right? लेकिन western hippies and western world जब आया इंडिया और इन्होंने ये देखा तो उन्होंने तंत्रा में क्या देखा? सिर्फ सेक्स।
क्योंकि सेक्स उनसे रेजोनेट किया और ले जा करके. सो इफ यू गो टू अमेरिका और एनी वेस्टर्न वर्ल्ड, तंत्रा मीन्स सेक्स, which is just an insult. It is very much like saying, let me say this in a very clear word. Thinking of Tantra as just sexual techniques is like thinking of woman as an object of sex. There is far more to a woman than just sex. Sex though is a very small element of Tantra. And even that is a very spiritual side of sexuality. तो ये सारी चीजें एसोसिएट होने लगी. अब लोग आए, अब उनको किसी ने बोला कि अरे यार हम तो भांग पीते हैं शिव जी के टेम्पल पे, शिव जी की पूजा करते वक्त भांग पीते हैं. तो सबको लगा कि यार यही स्टोरी हो गई कि अरे लोग भांग पीते हैं, शिव जी गांजे से एसोसिएटेड है. साल में एक दिन किसी फेस्टिवल पे भांग बना के पीना इज वेरी डिफरेंट देन लिविंग अ लाइफस्टाइल कि आप रोज भांग पी रहे हो. कि नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है यार उसका. ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन वीड से का ओरिजिनेशन पूरा ये है. ठीक है, कोई भी क्या गौतम बुद्धा गांजा फूक करके बन गए स्पिरिचुअल? हठयोग प्रदीपिका, पतंजलि योग सूत्र, विज्ञान भैरवी तंत्रा, विच इज द मोस्ट ओरिजिनल मेडिटेशन टेक्स्ट एवर रिटन, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ डायलॉग बिटवीन शिव एंड पार्वती, जिसमें मेडिटेशंस दिए हुए हैं. मेडिटेशन के ऊपर बुक नहीं मिलती हैं सुशैन, अगर आप जा करके ढूंढोगे ना, ये सब न्यू एज बुक्स हैं. अगर आप ओल्ड स्कूल जाकर के मेडिटेशन की बुक्स ढूंढोगे तो नहीं मिलती. द मोस्ट ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ मेडिटेशन इज विज्ञान भैरवी तंत्रा, जिसको कहते हैं कि शिव पार्वती के बीच में डायलॉग था. उसमें कहाँ लिखा है कि आप गांजा फूक करके स्पिरिचुअल बन जाओ? उपनिषद में कहाँ लिखा है कि आप गांजा फूक करके स्पिरिचुअल बन जाओ? एवरी सब्सटेंस हैज मेनी यूजेस. वन यूज इज टू get some access to the mind which can help you maybe take a few steps towards your spiritual journey. थोड़ा सा आप कर सकते हो, but सबके लिए नहीं. But that is not a rule and that is not the only element. ठीक है, तो जैसे आप आयुर्वेद में देखोगे, आयुर्वेद में कैनबिस को वन ऑफ द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स बोला गया है. लोग कहते हैं बोला गया है, लेकिन किसी प्लांट को बोलना कि वो वन ऑफ द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है, वर्सेस उसको चिलम में डाल करके फूकना इज टोटली डिफरेंट. अब जैसे अगर कल को साइंटिफिक रिसर्च आपने की, सपोज करो सुशेन ने साइंटिफिक रिसर्च की कि दूध जो है वन ऑफ द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड्स है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है. अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गाय खरीद के रोज 10-10 लीटर दूध पी रहे हो. ऐसा थोड़ी होता है, इसका कोई तुक नहीं है. ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ materialism, the consumer society, in diluting the entire positioning of cannabis in ancient societies, especially the Hindu society, to make it just more fun and easily palatable for the general masses. आसान चीज, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है यार. अगर इतना यार 50 रुपए की पुड़िया आती है गांजे की, अगर इतना आसान है स्पिरिचुअलिटी करना, तो यार गांजा वांजा फूको आराम से. कौन सा, मेरे को आप एक ऐसा दिग्गज स्पिरिचुअल गुरु बताओ जो गांजा पी करके कहीं भी पहुंचाओ. जिड्डू कृष्णमूर्ति, गौतम बुद्धा, सच्चिदानंदा, शिवानंदा, ओशो, none of them. Nobody advocates. There is no evidence. This is just a pleasure seeking mechanism. कि आपको एक पॉइंट चाहिए कि भैया ऐसा है ना कि ये ड्रग नहीं है, ये तो मतलब कल्चर रिलीजन से है, तो हम मार रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं. आप माल फूकना फूको, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यू आर एन एडिक्ट ऑफ दिस सब्सटेंस एंड यू कांट यूज एनी एक्सक्यूज कि आई यूज इट बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है. या और यार एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर 2 ways to understand history. ठीक है, one is that you go and read books on history. Okay, then you have to find actually people who are real historians. There is another way to understand history is by reading travelogues. Travelogues of people who have traveled in India during 15th, 16th, 17th, 18th century and they have written about their encounters. आज की डेट में अगर कोई दिल्ली आता है, 1 साल दिल्ली में घूमता है, दिल्ली के बारे में लिखता है, तो वो लिखेगा ना कि पब्स थे, लोग हशीश फूक रहे थे, एक गांजा वाज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, वेप चलता था. आप कोई भी ट्रैवलॉग देखो, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड का, उसमें यूज ऑफ सब्सटेंस एट अ सोशल लेवल, a daily regular level does not exist. अब तंत्रा को आप देखो,
जैसे तंत्रा इज द फिलोसफी ऑफ द माइंड. माइंड हैज मेनी डार्क साइड्स एज वेल. सो तंत्रा का एक साइड है विच इज डार्क. देयर आर सम स्कूल्स ऑफ पीपल हु प्रैक्टिस सर्टेन पार्ट्स ऑफ तंत्रा, जैसे अघोड़ हो गया, जो नागा साधु हो गए, वो लोग ये सब सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं. ऐसे रिचुअल्स हैं स्पिरिचुअल स्कूल्स में, माइंड स्कूल्स में इनको कहता हूं, रादर देन स्पिरिचुअल स्कूल्स, वेयर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट साइड्स ऑफ द माइंड. हर स्कूल में, लैटिन अमेरिकन स्कूल में, अफ्रीकन स्कूल्स ऑफ माइंड में है, वेयर पीपल हैव यूज इंटॉक्सिकेंट्स टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल्स. बट हाउ दे वर परफॉर्म्ड, वेयर डिड दे रीच, दैट इज नॉट नोन प्रॉपरली, स्पेशली फॉर तंत्रा एंड ऑल. अब जैसे तांत्रिक्स हैं, अघोड़ हैं, नागा साधु हैं, उनके बारे में तो कहते हैं कि यार वो फीकस भी खा लेते हैं, बिकॉज उनका फंडा है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अर्थ ओनली. तो क्या हम फीकस खाना, लोग जो फीकस खाना चालू कर दें? ये जो है ना, दिस इज जस्ट अबाउट कन्विंसिंग योर सेल्फ दैट वॉट यू डोंट हैव एन एडिक्शन, वॉट यू आर डूइंग इज राइट. ठीक है, इसका कोई तुक नहीं है. स्पिरिचुअलिटी अगर आपको सही में चाहिए, हैव द गट्स टू गो ऑन अ जर्नी, हैव द गट्स टू एक्सप्लोर वीड ऑल्सो, कर लो आप, बट देन बी ऑनेस्ट वेदर इट इज टेकिंग यू समवेयर और नॉट. पहली बात तो एसी पे बहुत डिबेट हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, कहाँ जा रहा हूँ भाई मैं, मेरे को बताओ तो सही कि वो डेफिनेशन क्या है. कोई किसी ने बताया है अभी तक कि एग्जैक्टली स्टेप्स क्या है, वो पाथ क्या है? आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ. स्पिरिचुअल पाथ है क्या, उसके स्टेप्स क्या है, हमें करना क्या है? You know, so these are not good ways to live life. These are, you will not go anywhere if you have a spiritual quest. Have the guts to really go on a journey and explore everything and be honest with yourself. एक मैं शिवा के ऊपर बोलता हूँ एक चीज, ठीक है? अब इसका शिवा से लिंक क्या है? क्योंकि शिवा हर जगह शिवा शिवा लोग कर रहे हैं. You know, it is very sad that Shiva, who gave yoga and you know, the symbol of Shiva is very powerful. Yoga, tantra and all that. एक चीज हुई थी, सागर मंथन जिसको कहते हैं, ये माइथोलॉजी में लिखा हुआ है. तो ओशंस ने बहुत ज्यादा पॉइजन यू नो देना चालू कर दिया था, इतना पॉइजन कि पूरा धरती खत्म हो जाती. तो शिव ने वो सारा पॉइजन पी लिया था. वो इतना पॉइजन पीने के बाद बहुत हीट हो गया था उनमें, ये माइथोलॉजी कहती है. तो उनको कहा जाता है कि पार्वती माता ने गांजा दिया था कि आप गांजा पीजिए, भांग का वही ओरिजिन है कि आप गांजा पियो तो, भांग पियो तो थोड़ा ठंडा हो जाओगे आप. ठीक है, तो ये माइथोलॉजी में है. बट दैट डजंट मीन दैट शिव हैड अ लाइफस्टाइल ऑफ वीड, कि वो सुबह गांजा फूक रहे हैं. वो तो गलत है ना. यू आर जस्ट इंसल्टिंग सच अ सुप्रीम सिंबल. मुझे नहीं पता कि वो सही में कोई इंसान थे या क्या थे. बट इफ यू लाइक, आई एम अ शिव फॉलोअर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, आई हैव माई ओन रिलेशनशिप विथ शिवा. यू नो, मैं मेडिटेशन करता हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि कोई आदमी है, कोई ये है, कोई ये है. बट टू एसोसिएट दैट विथ समथिंग सो नेगेटिव, मतलब इतना स्मॉल एन एलिमेंट, और इट इज नॉट राइट. यू आर जस्ट लिविंग इन अ डिल्यूटेड वर्ल्ड. लास्टली आई वुड से दैट योगा हता योगा, राजयोग का फंडा क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी इग्नोरेंस को कम करिए. विवेक ख्याति अविप्लव कहते हैं उसको, कि आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए. योगा सेज दैट इफ यू वांट टू रिमूव पेन आउट ऑफ योर लाइफ, द पाथ इज योगा. एंड व्हाट योगा डज is that it builds your awareness to such a level that you are in the constant state of awareness of 5 senses: emotions, ego and intellect. Okay. When you should spend some time in the evening today and go deeper into this idea that if a human being becomes aware, complete 100% awareness 24/7 of his 5 senses, his emotions, his ego and his intellect, will he not reach the supremest state a man can reach? कुछ बचता भी है उसके बाहर. And that is the path of spirituality. That is the path of yoga. That is the destination of samadhi. कि आप ऐसे स्तर पे चले जाओ कि आपका पूरा कंट्रोल हो आपके सेंसेस पे, आपके घमंड पे, आपकी ईगो पे, आपकी भावनाओं पे. कि कोई आपको अगर बोल दे कि यार सुशेन कितना गंदा पॉडकास्ट कर रहा है, तो आपको बुरा ना लगे, है ना. आपके इंटेलेक्ट पे कि आप क्या आइडियाज अपने अंदर डाल रहे हो. ये तो मतलब बोलना कि 50 रुपए की पुड़िया खरीद के आप स्पिरिचुअल बच जाओगे, उससे बेवकूफी वाली इग्नोरेंट एटीट्यूड तो मैंने जिंदगी में नहीं सुना. अरे 50 रुपए की पुड़िया है यार, 100 रुपए की होगी अभी, मुझे नहीं पता.
So this is not right attitude. You are going nowhere. You are just getting ignored. So it is very important for your audience and everyone to understand the roots of this issue and to go on a spiritual journey in a more honest, authentic way. Okay. Sir, how did you get out of this weed addiction? आपकी रिकवरी जर्नी कैसी थी? यार मेरी रिकवरी जर्नी तो थी कि पहले मैंने वीड छोड़ा बाय विल पावर, ठीक है, और उसके बाद आई क्विट विस्की, आई क्विट रम, बिकॉज क्या होता है ना, व्हेन यू रीच अ स्टेज, यार वीड की नहीं, नशे की एक पूरी जर्नी होती है, ठीक है, प्रॉपर उसके स्टेप्स होते हैं। तो उसका एक स्टेप होता है वेयर द डिस्ट्रक्शन स्टार्ट्स हैपनिंग, एंड नाउ यू कैनॉट रियली गो कंप्लीटली ब्लाइंड ऑन अ डेली बेसिस कि नहीं नहीं मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नौकरी पे आप जा नहीं रहे हो। यू नो वीड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वीड के साथ जो प्रॉब्लम है कि आप वो काम ही नहीं करते जो आपको पता है जरूरी है, कि सोए हुए हैं, आलस, प्रोकास्टिनेशन इज द बिगेस्ट सिम्टम ऑफ वीड एडिक्शन, कि कल कर देंगे, छोड़ देंगे, नहीं जाना, रहने दो, हर चीज से बंदा कटने लगता है, राइट। वो स्टेज जब आ जाती है आप भाग नहीं सकते। उसके बाद क्या होता है कि बंदा अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करने लगता है। तो मैं भी वही कर रहा था। मैंने सोचा पहले मैं गांजा छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैंने गांजा छोड़ने का शराब बढ़ गई, तो मैंने सोचा कि विस्की छोड़ देता हूँ। रूल्स रेगुलेशंस लगाने लगते हो आप कि वीकेंड पे ही पीऊंगा, 2 पैग पीऊंगा, वो सब मैं करने लगा। और उसके बाद विस्की छोड़ी मैंने, जब वो नहीं कंट्रोल हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं शैम्पेन पीऊंगा, वाइन पीऊंगा। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बियर पे आ गया। और ड्यूरिंग दिस टाइम आई वाज आल्सो ट्राइंग टू सीक हेल्प हियर एंड देयर। इंटरनेट पे हेल्प ले रहा था, रीडिंग करके, पॉडकास्ट वगैरह। जैसे आज लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं मेरे सोशल मीडिया से, उस टाइम पे शायद उतना नहीं था, तो जो भी था यूट्यूब वगैरह पे वो देखता था, बुक्स पढ़ता था, लोगों से भी मिला, डॉक्टर से भी मिला एक बार सिगरेट के लिए। और फिर धीरे धीरे करके व्हेन आई रीच्ड अ स्टेज वेयर नथिंग इज वर्किंग, you know, somehow I found someone with whom I connected, and I took a counseling and I came out of it. And now it's more than 9 years that I'm totally sober, and I think at my most spiritual best, you know, without any weed. I don't have to go out thinking यार यहाँ गाजा भरूँ, यहाँ टॉयलेट में गाजा भर लेता हूँ, अरे इसको स्मेल तो नहीं आ जाएगी। So that is spirituality, freedom, पूरा freedom, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। वाह, वेल सेड। सर Yeah, yeah. आपका ये बताइए, अभी निबाना जो आपका इनिशिएटिव है, आप उसको एक्सप्लेन करिए प्लीज ऑडियंस को। Yeah, see, so Nibbana is basically a startup, okay? And when I came to a conclusion that I have to work in this area full time, तो जब मैंने नशा छोड़ा उसके बाद I had actually decided that it's done for me, alcohol, drugs, tobacco. मैं अब इसमें दुनिया में ही नहीं आना, मुझे नाम ही नहीं लेना। बट मेरी जो रिकवरी थी वो बड़ी अच्छी हुई थी, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं था कि मेरे को इंगेज नहीं करना वर्ल्ड में, एंड दैट इज द ट्रू रिकवरी। यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम सब्सटेंसेस, हर जगह मिलेगा यार आपको, बट यू हैव टू कम टू अ प्लेस वेयर इट डजंट अफेक्ट यू। सो मैं जब सब्सटेंस से निकला उसके बाद भी मैं घूमता फिरता था, मैं नाइट क्लब्स जाता था, म्यूजिक सुनता था बैठ करके, मैं कभी स्केप नहीं किया इससे। सो लाइफ वाज नींबू पानी, लेमनेड पीता था, कोक पी लेता था, 1-2 गाने सुन लेता था। तो लोग मेरे से पूछते थे कि आप पी नहीं रहे हो, यू नो, बट स्टिल यू आर हियर एंड ऑल। सो दिस थिंग नेवर वेंट अवे। एंड देन व्हेन आई वाज बैकपैकिंग, आई वाज डिजिटल नोमैडिंग, आई वाज स्टेइंग इन हॉस्टल्स, यू नो, टिपिकल लैटिन अमेरिकन एशियन हॉस्टल्स, और वहाँ पे आई यूज्ड टू टीच योगा मेडिटेशन ऑल्सो। तो वहाँ पे भी लोग बड़े प्रभावित होते थे कि आपने छोड़ दिया, तो कितने लोग मदद भी मांगते थे। इस बीच मैंने एक एनजीओ के साथ भी काम किया था जो नशे के ऊपर करता था। तो वहाँ पे जो लेडी एडमिनिस्ट्रेटर थी उन्होंने बोला था आप आकर के बात करो, थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो आई जस्ट वेंट, तो इट नेवर लेफ्ट। एंड आफ्टर कोविड व्हेन आई मूव्ड बैक टू इंडिया, आई वाज लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम a friend of mine was running an NGO in the same space. So she told me, why don't you also come and contribute and all? And when I started working with them, they told me to make a presentation on what can be done. स्ट्रैटेजी साइड थोड़ा सा। तो मैंने उसके लिए जो है ना बहुत डीपली नंबर्स वगैरह देखे थे इसके नशे के अच्छे से, और उस वक्त मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इंडिया में और कोई कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट खुला हुआ है, तो न्यू ब्रांड्स आर कमिंग, यू नो, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट इज हैपनिंग फॉर टबैको, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर एंड नो वन इज एबल टू डू एनीथिंग। तो और मैं नया प्रोजेक्ट ढूंढ ही रहा था,
So I said that, okay, I am going to start working on it. And when I started working on it, I realized that this problem cannot be solved by me being a counselor, just being a counselor. I do counseling, but I realized that what India needs is a proper ecosystem. So at Nibbana, I decided that I am going to work towards creating a full fledged startup, which is going to be a company which is going to create a community focused, holistic ecosystem and a trustworthy place यूजिंग माइंडफुलनेस, न्यूरोसाइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं कंट्री में कि जिसको भी मदद चाहिए जैसे भी इन द बेस्ट वे मिल सके। उसका मतलब है कि एक जो टीनेजर है उसकी मदर को भी हेल्प चाहिए just to know how to deal with the teenager, her son, so that he doesn't get into vaping. उसका मतलब है कि एक ऐसे आदमी को भी मदद चाहिए जो कि बहुत गरीब है एंड ही कैन नॉट गो टू अ रिहैब, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होंगी। उसके लिए मे बी वी विल वर्क विद एनजीओस एंड ट्राई टू टेक सीएसआर एंड हेल्प दोज गाइज। देयर आर पीपल हु आर लाइक मी हु कैन अफोर्ड गुड सर्विसेज, एक्सपेंसिव सर्विसेज, यू नो, नॉट एक्सपेंसिव बट दे कैन पे फॉर इट। तो उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होंगी। उनके लिए मे बी वी विल ओपन अ रिहैब वेयर दे कैन कम एंड स्टे फॉर लॉन्ग। सो द एंटायर population which is troubled by this problem, you provide the service to everyone in the best possible way. There is a huge population which don't resonate with this problem, but they just want to reduce it, which is fair. You know, ऐसा हम नहीं कहते कि भैया सिगरेट ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा नहीं है, रिक्रिएशनल यूज है। तो ऐसे लोग हैं जो हैं कि यार चलो यू नो हम 5 पैग नहीं पीना चाहते, हम सिर्फ 2 पे आ जाना चाहते हैं हफ्ते में 1 दिन, तो उनके लिए यू आर गोइंग टू create different sort of services. Some people may not need any personal counseling, any therapy. They may be completely okay by just doing a DIY course on an app. Yeah. Or So this is what our mission. Like AI also. AI therapist, right? So the AI side is very interesting. We want to incorporate AI because AI is going to help us personalize the service, right? So we want to give a service to Sushant based on completely understanding his problem at a personal level and giving him solutions which are optimized for him so that he can come out of substances in the shortest period of time. Wow. और AI तो बढ़ ही जा रहा है, you know, तो AI is a very important part of it, and we have just launched AI chatbot Yeah, sir. using I'll put the link. Drag. I'll put the Yeah. link below. So you can get a lot of help from there. It's not a generic chatbot. It is a properly LLM trained on addiction based on our users and based on very data. specific data. So आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अगर उससे पूछोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूं, तो बताएगा कि एग्जैक्टली आपको ये करना चाहिए, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो यहाँ से। Yeah, and we want to scale that up. And of course, neuroscience is also going up. So neuroscience is very important. Neuroscience principles are extremely important to help someone overcome substances, because ultimately the problem originates in the mind. Like Buddha said that you create your reality with the mind, inside the mind, and for the mind. That's what Buddha said. So even for weed, your love for weed originated in the mind, for the mind, and inside the mind. Huh. You have to understand the brain, and as a doctor you want to understand that what are the key neuroplastic networks which can be called the belief system values of a person, and identify them and change them. एक चीज होती है, this is known as a default mode network. तो हमारे जो नॉर्मल जो एक चीज होती है ना कि मैं सुशेंद्र धवन हूँ, ये मेरी ईगो है, जो आपकी ईगो है वो इसलिए बनी क्योंकि आपके सेट consolidated synaptic connections are between the auditory, visual, right, the back system. Yes, visual, auditory and kinesthetic system. Yes. That is the key. तो like there is one theory in de-addiction कि if you break this break this synaptic connection for some time, default mode network को shut down कर दो using different therapies like ECT, like transcranial resonance magnetic stimulation, TMRS or something it is known as, or even psychedelics like magic mushroom, psilocybin mushrooms, lysergic acid, diethylamide, dimethyltryptamine. तो इससे आप वो जो
पैटर्न्स जो आपके ब्रेन में बने हुए हैं ना वो सारे ब्रेक हो सकते हैं एंड बिल्कुल। आप भूल सकते हो वो आपका जो रिलेशन है आपका एडिक्शन के साथ एंड यू कैन हाँ, स्टार्ट योर जर्नी विद डी एडिक्शन. right. I agree to that, and there is a lot of research going on. So again, like psychedelics also have a huge role in helping people with mental health issues. But the problem that has happened with psychedelics is that they have never been properly researched. जैसे MDMA जिस बंदे ने बनाया था, he was a chemist. या एंड वो अपनी You know, वाइफ के साथ right. करता And था. हाँ, वो बहुत सही काम कर रहा था. But हुआ क्या, because of like politics and all whatever were the reasons, his lab was shut down, and we were never able to actually understand the Understand. psychedelics properly. And because of that, they went ahead and took a place in a black market. Ab instead of you getting proper psychedelics in the proper way in a controlled environment for good purposes in a clinic, अब आपको नाइट क्लब के बाहर कोई लौंडा खड़ा है 22-23 साल का जो आपको एमडीएमए दे रहा है, और वो एमडीएमए ऐसा है कि आप लेकर के 2-2 3-3 दिन सो नहीं रहे हो, नाचे जा रहे हो, नाचे जा रहे हो. ज्यादातर Right. मेथाम्फेटामिन मिक्स्ड होता है. जैसे वीड में मैं एक चीज बोलता हूँ सुशेन, वीड से मेरे को एक और प्रॉब्लम जो होना चालू हुई थी ना, कि ओरिजिनल वीड कई बार मिलता नहीं है आपको, स्पेशली अर्बन एरियाज में. स्पाइक्ड माल, काला इट माल. स्पाइक्ड माल, मिक्स्ड माल, अडल्ट्रेटेड माल मिलता है. तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं पता नहीं, बिकॉज आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस विद वीड कि वीड पीने के बाद एकदम ही गंदी हालत हो गई है. शू पॉलिश एकदम मिलाते हैं कुछ लोग. शू पॉलिश मिला देते हैं, कितने लोग बोलते हैं रैट पॉइजन मिला देते हैं, कितने लोग बोलते हैं कंपोज की टैबलेट्स लाइक स्लीपिंग पिल्स मिला देते हैं. सो वॉट एवर मिलाते हैं. तो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी नशे के साथ, कि बिकॉज हाउ विल अ पर्सन कीप कमिंग टू वीड व्हेन ही नीड्स इट. So even why is cigarette so addictive? Because there are many other elements which the cigarette industry has put so that you get addicted to it. तो वीड का भी वही है कि आपको प्योर माल मिलता नहीं है, ठीक है, और कंट्रोल आप लगा नहीं सकते. आपको लगता है कि इंडिया में डीक्रिमिनलाइज होना चाहिए वीड? नहीं यार, बहुत ही खतरा है, बहुत ही खतरा है. सी, दिस इज अ वेरी रॉन्ग आइडिया, बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर आवर सोसाइटी विथ द वेस्टर्न सोसाइटी. यहाँ पे चीजों को रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो अगर वीड लीगलाइज हुआ ना, उसका खतरा क्या है? ठीक है, दिल्ली वगैरह में आपके दुकानें होंगी, आप जाकर के ले लोगे, बट हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर दैट ऑल दीज पान शॉप्स आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट सेलिंग सिगरेट्स ऑफ वीड, लूज सिगरेट्स, एंड दैट टू किड्स हु आर 12 years old, 11 years old. आप नहीं रेगुलेट कर पाते. दारू ही रेगुलेट नहीं हो पाई है अभी तक. इतना ज्यादा अडल्ट्रेटेड शराब मिलती है इंडिया में, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पॉपुलेशन है, इसको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट एज अ क्रॉप, एज अ प्लांट, एज अ प्लांट डेफिनेटली इट हैज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू. तो जो उसका लेट्स से आप खुश होगे कि अगर मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वीड फ्यूचर में चल के, आप यार मैं ना खुश होऊंगा ना मैं दुखी होऊंगा, क्योंकि अगर एक डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसके पीछे पूरी एक साइंटिफिक बैकिंग है. मैं लैटिन अमेरिका के एक छोटे से गांव में था, बहुत ही छोटे से गांव में ट्रैवल में कर रहा था. वहां पे मेरे को एक बाम मिला सुशील, हरे रंग का बाम. वो मैंने खरीद लिया. वो बाम जो है ना, वीड से बना हुआ था, सीबीडी इन्फ्यूज्ड. ठीक है, और उस बाम का काम था पेन किलर. वो प्रॉपर डब्बे में था, वो दुकान के ऊपर रखा हुआ था, और मैंने देखा, मैंने तो इफ यू आर लीगलाइजिंग इट from that perspective, and there is a push from the medical community, and you are 100% sure that it is important for whatever medicinal value, then definitely it should come. But legalizing it so that in addition to whiskey, rum, tequila, you also have weed, that may not be the right policy for a country like India. वो एकदम ही बहुत ही ज्यादा गलत है. जैसे अफीम जो है, अफीम बनती है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जाती है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन है. तो वो दैट लीगलाइजेशन इज टोटली डिफरेंट लीगलाइजेशन देन हैविंग अ कॉफी शॉप जहाँ पे लोग गांजा फूक रहे हैं, या आप कहीं पनवाड़ी पे गए और बोला कि यार मेरे को 2 जॉइंट दे दे. दैट लीगलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. इट्स गोइंग टू जस्ट क्रिएट अ मेस. तो ये इस लेवल का लीगलाइजेशन लाइक प्रॉब्लमेटिक है. बट लाइक लेट्स से अगर एपिलेप्सी, कीमोथेरेपी, फॉर ऑल दोस पेशेंट्स के केसेस के लिए मेडिकल marijuana इंडिया में शुरू होता है तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. बिल्कुल नहीं होगा यार, बिल्कुल. यार देखो, मेडिकल साइड का जब आप यूज बोल रहे हो,
इसको लीगलाइज कैसे होगा? दैट मेडिकल कम्युनिटी ऑफ इंडिया हम्म, is going to reach out to government and put across a formal proposal कि हमें लोगों को ठीक करने के लिए इस सब्सटेंस को लीगलाइज करना पड़ेगा, राइट? और गवर्नमेंट उसके बाद आर गोइंग टू टेक सम स्टेप्स ऑन इट, उसके ऊपर चर्चा होगी, प्रॉपर लाइक इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसके बाद उसको लीगलाइज किया जाएगा ना। तो ये तो लीगलाइजेशन इज कंप्लीटली ओके, और इसमें पुश आना चाहिए मेडिकल कम्युनिटी से। इसमें पुश एक कॉलेज स्टूडेंट से नहीं आना चाहिए जो सुबह से शाम तक गांजा फूका रहा है और वो फंडे दे रहा है बैठ करके कि इसको तो लीगलाइज करो, इसको तो लीगलाइज करो। डॉक्टर्स, इंडिया के डॉक्टर्स तो मतलब वो अपनी लाइफ से वैसे इतने परेशान है, और क्यों टेंशन उठाएंगे वीड हाँ, लीगलाइज कराने के लिए। बट यार अगेन सुशेन, उसमें एक और सवाल आता है ना, दैट is the substance so important? Do we need to give the bandwidth to the substance? हाँ, like इतना important है क्या? उसके substitutes नहीं है क्या? क्या कीमोथेरेपी की आप बात जब कर रहे हो, is weed really so important कि उसको legalize करना चाहिए? एफिकेसी के मामले में वीड इतना नहीं है, बट हाँ। जो भी हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के बदले, जैसे हम वॉमिटिंग रोकनी है तो हमारे पास है एंटी एमेटिक एजेंट्स है वॉमिटिंग Right. रोकने के लिए, बट कैनबिस ना एक बहुत ही एक पेशेंट दर्द में है, पेशेंट उल्टी कर रहा है, पेशेंट को दर्द, पेशेंट को खाना भूख भी नहीं लग रही है, पेशेंट को नींद भी नहीं आ रही है, पेशेंट सैड भी है कि उसको कैंसर है। अब फंडे से एक दवाई तो दिख रही है मुझे कि हाँ यार ये इसको भूख भी दे देगी, ये इसको सुला भी देगी, खुश भी कर देगी कि भाई चल तेरे को कैंसर है, बट अभी ये 10-15 मिनट तू खुश होने वाला है, ठीक है, एंड तेरी उल्टी भी रुक रही है। तो हाँ, तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, फॉर वेरी सिवियर केसेस ऑफ एपिलेप्सी ना, जब हमने सोडियम वैल्प्रोएट, हमने सब ट्राई करके देख लिया, फिनोबार्बिटॉन तक देख ली, पेशेंट का सीजर जा ही नहीं रहा है, तब हमें अगर हम सिर्फ वीट की लाइक कैनबिस का ऑयल एक्सट्रैक्ट आता है वो अगर सब लिंगुअली दो और उससे सीजर चले जाए, तो यार इतना भी बुरा तो बिल्कुल बुरा नहीं यार। देखो, सब्सटेंस के ऊपर मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कहता हूँ, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ सब्सटेंस। देयर इज अ रिक्रिएशनल यूज, देयर इज अ मेडिसिनल यूज, देयर इज अ मेंटल यूज एज वेल, जिसको आप स्पिरिचुअल यूज भी कह सकते हो। मे बी वीड का उतना ज्यादा नहीं है, बट देयर आर सब्सटेंसेस जिनका स्पिरिचुअल यूज हुआ है, दैट यू कैन कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, यू कैन रीच, यू कैन गेट सम एक्सेस टू डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द माइंड, ठीक है। एंड देन देयर इज एन एडिक्टिव यूज एज वेल। सो एडिक्टिव यूज, वी शुड नॉट अडॉप्ट एनी पॉलिसी जिससे एडिक्टिव यूज बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएं। जो आप मेडिकल कम्युनिटी बोल रहे हो, अगर ये जो आप बात कर रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड यूज कि आप इसका एक्सेस डॉक्टर्स को दो। फार्मास्यूटिकल में आप जाओगे, यू कैन नॉट जस्ट गेट एनी मेडिसिन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, राइट? उसको दो और पतंजलि को नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, राइट, चूरन वूरन बनने लग जाएंगे, देन वी आर एग्जैक्टली। तो आप इसको उस ढंग से रेगुलेट करो कि अगर इसका यूज है तो ढंग से मिले। इवन इफ यू वांट टू लीगलाइज फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस आल्सो, you need to have a bigger discussion that who's going to get access to it, how are you going to regulate it. जो ये push आ रहा है legalization का, this is again a western value adopted without looking at the Indian society in a very specific way, in a very personalized way. कि जो इंडिया में लोग बोल रहे हैं कि गांजा लीगलाइज करना चाहिए, they are all urban Indians. Urban Indians like you and me who are working in big companies and all, and they are liberals, and they want to travel, and they are like कि it's not an addiction, we are able to manage it, हम पढ़े लिखे हैं, we can take the responsibility, so legalize for us. And then they give the argument कि US में कई जगह लीगल है, यूरोप में है, थाईलैंड में है, and all that. So my question is कि अभी आपको मिलता नहीं है क्या इंडिया में? बहुत मुश्किल से मिलता है क्या गांजा? मतलब दिस इज अ फनी आर्ग्यूमेंट, बट द फैक्ट इज कि इतना आप क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मेडिकल कम्युनिटी को बोलने दो ना आकर के, बिजनेस कम्युनिटी को बोलने दो आकर के कि भैया लीगलाइज करने दो। आप इतना टेंशन में क्यों ले रहे हो? इफ यू गो टू विलेज एंड ऑल दैट, वहां पे जो लोग गांजा पीते हैं वो पीते हैं, प्योर गांजा मिलता है उनको। हाँ, और वो शाम को काम से आते हैं और काम से आने के बाद अपना गांजा पीते हैं, एक जॉइंट पीते हैं, एंड देन इट इज अ रिलैक्सेशन फॉर देम। ये चीज मैंने हिमाचल में भी देखी है। हिमाचल इज अ क्लासिक केस स्टडी सुशेन। हिमाचल में इफ यू गो टू, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कांगड़ा देयर, और वहां पे म्यूजियम में गया था, बहुत ही बढ़िया म्यूजियम है उसमें दे हैव ऑल द पेंटिंग्स ऑफ 16th-17th सेंचुरी ऑफ ओरिजिनल किंगडम्स ऑफ हिमाचल, बहुत तो इतने पुराने। उसमें कहीं पे भी हशीश का कोई
एक पेंटिंग नहीं है। अरे यार, अगर आप इतना अगर हशीश था हिमाचल में सदियों से, उस टाइम में जो आर्टिस्ट पोएट वगैरह थे उनको बनाना चाहिए था ना कि कोई बंदा चल। एक भी पेंटिंग नहीं है उस पे, राइट? So this entire hashish culture is a result of the black market which has happened. You know, the travelers, the hippies who have started coming, and today there is a mess. There is a mess in Himachal Pradesh because of hashish. You know, तो ये गलत है. This is not the right way to deal with the problem. हर चीज को हवा बना करके आप अभी जाओ, अभी कितने लोग पीड़ित हैं वहाँ हशीश से, मेरे को फोन आते हैं, मैं वहाँ रहा हूँ 1 साल. So when we are talking about legalization and all, it needs to have a bigger discussion, and it needs to be done with people who are qualified for it. जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो पॉलिसी कम्युनिटी है, आपने पूरा ब्लैक मार्केट बना हुआ है यार. Why is tobacco such a big mess? Because it was legalized, it was adopted by the corporates. और एक बार corporates आ गए वीड में, तब उसके ऊपर मार्केटिंग होगी. क्योंकि corporates का तो यार फैक्ट यही है कि कैपिटलिज्म इज अ ग्रेट मॉडल. But the fact is that the company runs on money, the growth on money. तो फिर एक बार किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाना ही पड़ता है यार. They play within the system. जैसे अल्कोहल का अभी देखो आप, अल्कोहल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. New brands are coming. Everything is coming. Now alcohol is a really rotten substance. It is the worst substance, worse than weed. Because violence होता है, लोग मर जाते हैं उससे, मारते हैं. ये सब तो वीड में नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, राइट? बट वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको लीगलाइज कर रखा है. अब मार्केट एक बार डिमांड बन गई तो सप्लाई तो आएगा कहीं ना कहीं से. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वीड, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल that, you know, why is that substance so much important that we want to legalize, and whether that conversation is happening among the right people. अरे यार, आप अगर काम कर रहे हो 25 साल के तो फूको गांजा. आपको इतना इमोशनल अटैचमेंट क्यों है? दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम. Why are you so passionate about weed being legalized when you are not a doctor, when you are not a policy maker? इतना इमोशन क्यों है आपका? आप तो यार कुछ और काम करते हो, शाम को आकर के गांजा मारते हो या दिन में भी मारते होगे. So why are you so emotional? कुछ तो बात है ना. सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, why are you scared of accepting the fact कि लीगलाइज करो कि मेरे को आसानी से मिले, मेरे को मारने में मजा आता है. मुझे नहीं, क्यों नहीं बोल रहे भाई? मुझे घर नहीं मंगाना है माल. My final thought would be that just be careful, man, because I completely agree that not everyone is going to get addicted to weed, but it can kill your creativity. It will slow you down. It will make you take you to a state where you will just withdraw from engaging with the life. And if you are unfortunate like me, you can get serious addiction of weed. So don't stay in this false idea कि weed is for spirituality, creativity, and you cannot get addicted. If you get addicted, the road is going to be really bad. I get calls every day. In fact, Sushen, I am surprised. I was not even expecting the number of calls I get for weed. कि सर weed छुड़ा दो. आधे लोग तो मानते नहीं वीड अडिक्टिव है, और आपको तो डार्क रियलिटी पता है. Right? So that is the only thing I would say, yaar, and that's it. So, oh my god, it was a very heavy sesh that we just had together. Yeah, it was a very light conversation. काफी अच्छा था. Thanks a lot for inviting me. And hopefully audience को काफी आज पता चला होगा इस perspective of cannabis abuse के बारे में भी. If anybody out there needs help regarding your addiction with cannabis or any other substance, so you can all contact sir. And sir, let's have another conversation अभी आगे चल के. मेरे को ऐसा लगता है कि there is a lot that we can get out of each other, ठीक है? And yeah, absolutely. And Sushi Talks will be airing soon. Thank you so much.